To introduce our guest for today. Today we have with us Siddharth Matalewala, Senior VP and Fund Manager. So he is investor at heart and fund manager by profession. So he joined Concept Investwell in the year 2006 after completing his MBA, and since then he has been working with them. Basically, a SEBI approved portfolio manager services provided by Concept, and he manages two plans. So he firmly believes in disciplined investing, and apart from that, he believes in becoming a better investor every day. And during his journey, so he had more mistakes to share than success stories, and that would be beneficial for all of us. So, Siddharth, very warm welcome. So, I would request an opening note from you, and just in case I miss something on your introduction, that would be great. So, as to you add it from your side, and also like when you started your journey and how it evolved over a period of time. Yeah, Siddharth, over to you. Yeah, thank you, Prince. First of all, I want to congratulate you. Should I talk in English or Hinglish? What is comfortable language for all? Siddharth, we have a mixed audience from north, south, so any will do. Hindi, English, mix of both. Fine, Yeah. fine. Sure. Yeah, it would be good for me also. I will start with saying कि जैसे प्रिंस ने बोला है कि I am an accidental investor, but here if I say I am not an accidental investor, I am बोल सकते हैं कि nepotism जो film industry में चल रहा है वैसे ही my father is a very good investor. He has been investing since 1983-84 onwards. और तब से मैं उनको देख रहा हूँ उनके यानी तब 83 में तो मेरा जन्म हुआ था, लेकिन बाद में आफ्टर मे बी 12th स्टैंडर्ड आई वॉज मोर कीन एंड विटनेसिंग कि वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब मैं देखता रहता था. तो सम ऑफ हिज very good successes, I would say कि 1992 he applied for Kotak Bank IPO. अभी उस टाइम पे वो कोटक बैंक नहीं था, इट वॉज अ कोटक महिंद्रा फाइनेंस. कोटक वॉज अ ब्रोकर एट दैट टाइम. और उसके बाद दे अप्लाइड फॉर जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. And in 2003 they applied for they got the license for bank. So major wealth creation जो कोटक में हुआ है, it happened after 2003. So my father has been invested till date. So 100 shares applied at that time, क्योंकि see वो टाइम पे इतने पैसे हमारे पास भी नहीं थे, तो मिडिल क्लास फैमिली जो अप्लाई कर सकते थे. लेकिन गुड थिंग वो थी मेरे फादर में कि ही नेवर वेंट आफ्टर गोल्ड, he never went after FDs, किसान विकास पत्र या फिर जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे वहां पे वो कभी इन्वेस्ट उन्होंने किया ही नहीं है. टुडे इज 70 years old, 75 years old, but still 100% of his net worth is in equity market. So not even real estate, right? हमारा सिर्फ एक घर है, हमारी एक फैक्ट्री है, बाकी हमारा कुछ भी रियल एस्टेट में भी नहीं है. तो एंड वी आर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. यानी जो पुलक प्रसाद ने अभी मैं उनका अभी इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोलते थे कि वी आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वी आर परमानेंट ओनर्स ऑफ बिजनेस. तो हमारा भी कुछ ऐसा बोल सकते हो कि मैनी बिजनेसेस वी आर ओनिंग फॉर, अभी कोटक बैंक वी आर ओनिंग फॉर 31 years नाउ. इन्फोसिस was the next break. तो अगर कोटक का थोड़ा बता दूं कि कोटक 100 shares have now become 8,000 shares. And 9,500 value has become around 1.6 crore today. तो this is the type of wealth creation we have seen, और मैंने खास करके देखा है घर पे. दूसरा 1993 he applied for Infosys IPO. अगेन सी ऐसा नहीं है कि उनके सब अच्छे ही IPO उन्होंने किए हैं, बहुत सारे IPOs ऐसे भी किए हैं कि जो आज जीरो हो गए हैं, जिनकी हमारे पास एक कबर्ड में फाइल है, उसमें काफी सारे शेयर्स, किसमें 10,000 लगाया था, किसमें 20,000 लगाया था, वो सब जीरो हो गया है.
लेकिन हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें 5-6 स्टॉक बड़े चाहिए, राइट? वही वॉरेन बफेट ने किया है, वही राकेश झुनझुनवाला ने किया है, वही सब जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जर्नी में वही होता है। विजय केडिया जी आप ले लीजिए। तो मेरे फादर में भी मैंने वही देखा है कि फ्यू सक्सेसेस जो इतने सारे मिस्टेक्स होती है उसको ओवरकम कर देते हैं और बहुत बड़ी तरह ओवरकम कर देते हैं। तो एट द एज ऑफ 51 ही बिकेम फाइनेंशियली फ्री, और फिर फ्रॉम दैट टाइम आज तक वो इन्वेस्ट ही करते रहते हैं, और यानी उनको जो पसंद है वही वो कर रहे हैं। सो 1993 कमिंग टू इन्फोसिस आईपीओ, तो वो टाइम पे कैपिटल मार्केट मैगजीन सिर्फ आता था, तो ही यूज टू रीड दैट, और उसमें इंटरनेट के बारे में लिखा हुआ था, और शायद एक आध पैराग्राफ ही लिखा हुआ था कि इंटरनेट क्या चीज है। तो तब तो किसी को पता ही नहीं था कि इंटरनेट इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी चीज हो जाएगा। मेरे फादर ने थोड़ा पढ़ा और उनको इंटरेस्टिंग चीज लगी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ये आईपीओ करने लायक है, और उन्होंने किया। वो अपने रिलेटिव्स सबको बताया, फ्रेंड्स को बताया कि ये आईपीओ भरो। और सबको पता ही होगा कि ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ था इन्फोसिस का। तो जितने जिसने जितने शेयर्स मांगे होते सबको उतने शेयर्स मिल जाते। तो 100 शेयर्स अप्लाई किए थे फादर ने, मदर के नाम पे भी किया था 100 शेयर्स, तो अगेन वहां पे भी फुल अलॉटमेंट मिल गया था। एंड इट ओपनड ऑल्सो अप, यानी मुझे लगता है 90 रुपीज का इश्यू प्राइस था 1995, और 120 के 130 खुला हुआ था। और फिर बाद में तो इन्फोसिस की जर्नी सबको ही पता है कि इट हैज बीन अ बिग बिग वेल्थ क्रिएटर, सो दैट 9500 इज अप्रोक्सीमेटली 8.5 करोड़ टुडे। तो अगेन वी आर होल्डिंग इट फॉर लास्ट 30 years। और आपको सबको पता होगा इन्फोसिस अभी 52 वीक लो पे चल रहा है, राइट? तो अगेन से वी हैव सीन ऑल दिस, हम लोग ने काफी बार हमारे स्टॉक्स 50-60% टूटे हुए देखे हैं। जैसे कोटक बैंक इन 2008 was down around 84% from its high। तो काफी लोग हिल जाते हैं कि भाई इतना बड़ा ड्रॉ डाउन होता है तो आप कैसे होल्ड कर सकते हो। तो इसमें सी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो शायद आगे के डिस्कशन में हम क्वेश्चंस जो आएंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एनालिसिस पैरालिसिस अगर हम कर लेते हैं तो फिर होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है। ब्रॉडर व्यू रखते हैं, मैक्रो पिक्चर को माइंड में रखते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक नेक्स्ट 5 years 10 years में कहा जा सकता है, वो अगर व्यू हमारे माइंड में हो। और एक अच्छा पॉइंट जो मैं पहले से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी उत्पल सेठ जी का जो प्रेजेंटेशन था रिसेंट, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी रिगार्डिंग डिफरेंशियल इंसाइट्स। आपके पास एक डिफरेंशियल इंसाइट होना चाहिए। कोई भी शेयर अगर आप जब बाई करते हो तब भी वो हेल्प करता है आपको, जब आप होल्ड करते हो उसमें भी वो हेल्प करता है, एंड जब यो आप सेल करना चाहते हो तब भी वो ही चीज आपको हेल्प करती है। तो डिफरेंशियल इंसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही आगे बताऊंगा, लेकिन दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और फिर जब मैं कॉलेज में था तब मैंने सोच ही लिया था कि आई विल गो फॉर स्टॉक मार्केट। एक्चुअली 11th 12th आई डिड साइंस, साइंस स्ट्रीम में मैं था, क्योंकि माय फादर इज एन इंजीनियर, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो एक फैमिली में वही था कि भाई इंजीनियर ही बनना है। लेकिन 11th 12th में पता चल गया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर 12th के बाद आई वेंट फॉर बीबीए एंड देन आफ्टर एमबीए। और फिर बीबीए में ही सोच लिया था कि अभी अपने को स्टॉक मार्केट में ही आगे बढ़ना है। तो इन 2006 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन कंसेप्ट। तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट के तरह ज्वाइन किया। एंड इन सूरत एट दैट टाइम रिसर्च एनालिस्ट वाज समथिंग वेरी न्यू, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज डन इन मुंबई, राइट? तो एक नई चीज शुरू की थी। फिर 2008 माय कंपनी अप्लाइड फॉर पीएमएस लाइसेंस, एंड वी वर द फर्स्ट वन इन साउथ गुजरात टू गेट दैट लाइसेंस। और फिर 2009 में वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस इन पीएमएस। और तब से आज तक बस मैनेज कर रहे हैं। सो सी अगेन, पब्लिक मनी मैनेज करना और प्राइवेट मनी मैनेज करना वो थोड़ा डिफरेंट है। पब्लिक मनी में यू आर मोर आंसरेबल, प्राइवेट मनी में आप अंडर परफॉर्म करो, आप 3-4 साल अगर स्टॉक नहीं चलता है, जैसे कोटक बैंक इज हैज गॉन नोवेयर इन लास्ट 2.5 years, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हेन व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इन्वेस्टिंग, सॉरी प्राइवेट इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर आप अपने फंड में होल्ड करते हो और 2.5 साल नहीं चलता है तो यू आर मच मोर आंसरेबल। तो बस यही है जर्नी। और आई थिंक प्रिंस वी कैन गो अहेड नाउ।
Right, Siddharth. That's very nice, and I must say it takes a great courage to hold companies in downturns, and that too for a period of 3 decades. So, Siddharth, like today's time, the markets are getting more and more efficient, and the information flow is getting, there is too much of information, right? So, I mean, those times were different. You're talking about 90s or early 2000. So, do you can you draw a parallel like that investment in those times and today's time? Do you find it similar, or can we still think of holding companies for 30 years or maybe more than that, or maybe how you should think in today's perspective? राइट सी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, और मैं भी ये सोचता रहता हूँ जब भी जिनको भी सुनता रहता हूँ या पढ़ता हूँ, या हमारे पास जो स्टॉक्स हैं उसमें जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। लेकिन सी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपके ही उसमें आयुष मित्तल को सुना था, मित्तल फैमिली पूरा था उसमें। उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड के सर आपका कोई रिग्रेट है, तो उन्होंने यही बताया था कि बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बहुत अर्ली सेल कर लिए थे। दिस इज द केस विथ मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स या मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। आपने अगर सुनील सिंघानिया जी को भी सुना हो तो उन्होंने भी बोला था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन 2009 दे वर इन देयर दैट रिलायंस ग्रोथ फंड, राइट। लेकिन फिर बस 3-4 गुना हुआ और उनको लगा अभी काफी पैसा बन गया है और दूसरी अपॉर्चुनिटी शायद दिखी होगी, तो दे सोल्ड इट आउट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ 100 बैगर, राइट। तो कहने का पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग रिग्रेट करते हैं अच्छी चीजें बेच के। तो इससे यही सीखना है हमें कि अगर हम रॉन्ग भी जाते हैं तो हमारा स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, तो मे बी 50%, 60%, या चलो मैक्सिमम जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम राइट जाते हैं तो यू नो के मल्टीपल टाइम्स पैसा बनता है। तो इसके वजह से व्हाट आई फील इज के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज स्टिल रेलिवेंट। काफी सारे इन्वेस्टर्स ये चीज अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गए या फिर इवन राकेश झुनझुनवाला, उनका भी कोर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म ही है। टाइटन ही इज होल्डिंग फ्रॉम 2001 ईयर, नाउ ही इज अ क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर इन स्टार हेल्थ, वन ऑफ द प्रमोटर इन स्टार हेल्थ। तो फिर ये पुलक प्रसाद ऑफ नालंदा, अगेन ही इज प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। टेरी स्मिथ जो है फंड स्मिथ के, वो भी मोर और लेस यही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी। और सी नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडिया के हैं, उसमें तो अभी कोई किसी को डाउट नहीं है जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो आई थिंक एब्सोल्यूट टर्म्स में तो पैसा बनने ही वाला है। शायद रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जितना रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इन द मार्केट, सी तीन तीन चीजें होती है पैसे कैसे बनते हैं। तो भाई एक है कि इंफॉर्मेशन एज आपके पास हो, तो आज तो सबके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। ऐसा है नहीं कि आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है और मेरे पास बाद में आती है, ऐसा तो है नहीं। एवरीबडी गेट्स द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। दूसरा चीज क्या, एनालिटिकल एज। एनालिटिकल एज भी आज मोस्ट ऑफ द पीपल आर CFA CA, और इतना अच्छा डाइसेक्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट PNL को कि वहां भी मोर और लेस एज अभी जो है होनी चाहिए वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एज अभी एक ही रह गई है, वो है बिहेवियरल एज। तो जो मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे अगर हम थोड़ा अलग करेंगे तो शायद पैसा बन सकता है। और अगेन लुक के किन लोगों ने पैसा बनाया है, आप पास्ट हिस्ट्री भी चेक करो तो किसने बनाया है, तो वॉल्टन फैमिली ने बनाया है। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट एबल टू सेल, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर ओन शेयर्स, राइट, इसलिए उन्होंने पैसा बनाया। तो इसी तरह मुझे लगता है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स में भी क्यों पैसा नहीं बन सकता होल्ड करने से। और दूसरे प्रॉब्लम्स ये भी आने वाले हैं आगे जाके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी तो सिर्फ 10% है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार बात कर रही है आगे जाके वो भी बढ़ने ही वाला है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, टैक्सेस, STT, ये वो। तो मुझे लगता है कि वो सब भी आगे जाके इश्यूज बन सकते हैं। तो लेस चर्न इज अ गुड थिंग। और इवन म्यूचुअल फंड्स हैव प्रूव्ड दिस। PPFS म्यूचुअल फंड का आप देखोगे 8% टर्नओवर रेशियो है। So ideally they are holding stock for more than 6-7 years, right? तो and still they have proved कि वो बीट भी कर सकते हैं बेंचमार्क को, आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न एब्सोल्यूट भी बना सकते हैं। तो आई डोंट थिंक के चर्निंग से ही पैसा बन सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी बन सकता है, बाय एंड होल्ड से भी बन सकता है।
राइट सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया या जो डिस्कवरी होता है कंपनीज का, तो हाउ यू गो अबाउट दैट? आई मीन, आज आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट आप सोच के चल रहे हैं, तो कैसे आप स्टार्ट करते हैं? क्या आपका ड्यू डिलिजेंस रहता है, एंड हाउ यू एंड अप इन्वेस्टिंग बाय डूइंग द ड्यू डिलिजेंस? राइट। सी, जब हमने 2009 में पीएमएस शुरू किया था, तो अगेन मेरे पास चार एग्जांपल्स थे कि जिन्होंने पैसा अच्छा बनाया था और वेल नोन फिगर्स थे। जैसे राकेश झुनझुनवाला वाज फेमस एट दैट टाइम, प्रशांत जैन ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वाज फेमस, वॉरेन बफेट को तो हम सबने पढ़ा है, सुना है, और मेरे फादर को मैंने लाइव देखा था। तो ये चार में मुझे सिमिलरिटी ये दिखी कि दे बाय गुड क्वालिटी बिजनेस एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैंने भी सोचा कि दिस इज हाउ आई शुड स्टार्ट। तो इस तरह ही मैंने भी स्टार्ट किया, तो एंड फिर इवॉल्व होते गए, राइट। तो चार जो फिलोसॉफी मेरी है इन्वेस्टिंग की अभी, उसमें मैं चार चीजों पे बहुत फोकस करता हूँ। तो फर्स्ट बीइंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। सो मैं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी बड़ी कब बन सकती है, जब उसकी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी हो। जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री इंडिया में इज अराउंड 5 लाख करोड़। तो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री, एंड दैट इज वाई टाइटन हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेयर। उसका 7% मार्केट शेयर है आज, एंड वो सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है। और उसका मार्केट कैप अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इट इज एट अराउंड 2,47,000 करोड़ मार्केट कैप। तो अगेन आई वुड लाइक टू शेयर के आई बॉट टाइटन इन 2006। पहला स्क्रीनिंग वही हुआ था कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास है, राइट। तो वहां से आइडिया मिला था। फिर मैंने, तब तो मेरे पास, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, तो जस्ट मैंने ऐसे ही सोचा कि ज्वेलरी में कैसे क्या हो सकता है। तो सिंपल मुझे दिख रहा था कि माई मदर यूज टू गो टू लोकल ज्वेलर, लेकिन मेरी जो वाइफ होगी वो ब्रांड के पीछे जाएगी, यानी ऑर्गेनाइज प्लेयर के पीछे जाएगी, राइट। और वही अभी हो रहा है कि ओल्ड पीपल स्टिल आर गोइंग टू लोकल ज्वेलर्स, और लेकिन जो नया जनरेशन है, दे डोंट वांट टू गेट चीटेड ऑन गोल्ड। तो दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स या ब्रांड्स। तो इसलिए टाइटन हम मैंने खरीदा था। तो एंड स्टिल वी आर होल्डिंग, राइट, और इट हैज बिकम अ बिग पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो नाउ। तो ये पहली चीज है कि एक्सटर्नल। उसके बाद आता है बिजनेस। अगेन लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है कि बिजनेस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी हाई, यानी लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो भी जनरली हम देखते हैं कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अराउंड 10-11%। तो हमारी कंपनीज जो भी है वो उससे ज्यादा ही अगर आरओसी लाएगी तो फ्री कैश फ्लो बनेगा, राइट। तो आरओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स ग्रोथ। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सस्टेनेबल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी अगेन लॉन्ग रनवे अपने को चाहिए। तो ये दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि सिर्फ आरओ से ही नहीं, ग्रोथ भी होना चाहिए। और तीसरी चीज लीडरशिप होनी चाहिए कि हमारी जो भी कंपनी है वो टॉप 1 या टॉप 2 या टॉप 3 प्लेयर तो कम से कम होना ही चाहिए। क्योंकि अगेन लास्ट 15-20 ईयर्स आप चेक करोगे तो जो जिसने भी पैसा बनाया है कोई भी सेक्टर में, वो टॉप 3 प्लेयर्स ने ही बनाया है मैक्सिमम। सो पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट, बर्जर, नेरोलैक, उन्होंने पैसा बनाया है। फार्मा में आप देखोगे तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, उन्होंने पैसा बनाया है। तो टेक एनी सेक्टर, राइट। ऑटोमोबाइल में मारुति ने बनाया है। तो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आप 5th-6th प्लेयर को लोगे तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन व्हेन यू गो विद द लीडर तो उसमें पैसे बनने के चांसेस हाई होते हैं। तो अगेन ये तीसरा चीज मैं इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देता हूँ। देन कम्स ऑब्वियसली मैनेजमेंट के, हु इज रनिंग द शो। और मैनेजमेंट में मैं दो तीन चीज पे बहुत फोकस करता हूँ। वन इज इंटीग्रिटी। सो आर दे टेकिंग केयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर और नॉट। क्योंकि सी व्हेन आई एम होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, तो आई डोंट वांट के भाई हर बार वो अच्छा, हर साल अच्छा करे, लेकिन एक बार कुछ ऐसा कर ले कि जिसके वजह से पूरा वो वैल्यू ही खत्म हो जाए, इरोड हो जाए। तो गो विथ रिलायबल ग्रुप्स या गो विथ कंपनीज के जहां पे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तभी आप पोर्टफोलियो में उसको बड़ा वेटेज दे सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल माय फैमिली हैज
टू स्टॉक्स जिसका बहुत बड़ा वेटेज है, तो वन इज इन्फोसिस ऑफ कोर्स बिकॉज आईपीओ से है, और दूसरा है टाइटन। और टाइटन वी ऑल नो के टाटा ग्रुप है, दे हैव नेवर डन एनीथिंग के जहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कुछ परेशानी हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और सी ये होल्ड करने में भी हेल्प करती है। जब टफ टाइम आता है तब यू आर एबल टू होल्ड, क्योंकि यू नो कि भाई ये लोग ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कैपिटल एलोकेशन। क्योंकि अगेन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, तो जो फ्री कैश फ्लो आता है वो कहाँ डिप्लॉय होता है, वो इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कैपिटल एलोकेशन में भी यानी उसमें मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। और यानी बस मैनेजमेंट शुड बी पैशनेट, हंगर फॉर सक्सेस के पीछे होना चाहिए, क्वालिटी, तो ये सब तो देखते ही रहते हैं हम। एंड फाइनली बॉइल्स डाउन टू वैल्यूएशन। सी नाउ वैल्यूएशन इज मोर ऑफ एन आर्ट एंड लेस ऑफ साइंस। यानी कोई बार 40-50 पी वाला स्टॉक भी शायद सस्ता हो सकता है, और 10 पी वाला स्टॉक महंगा भी हो सकता है। तो उसमें अगेन कोई राइट आंसर नहीं है मेरे पास भी, पर जनरली वी डोंट सेल जब वो एक्सपेंसिव हो जाए या थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाए। आई विल नॉट सेल दैट। शायद मैं बाई नहीं करूंगा, होल्ड करूंगा उसको, लेकिन आई विल ओनली सेल जब वैल्यूएशन एकदम एग्जॉर्बिटेंट हो जाए, यानी ऐसा लगे कि ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, देन ओनली चांसेस ऑफ सेल। और वो बहुत रेयर केसेस में होता है, राइट। यानी जैसे 2000 में आईटी बबल में हुआ था, दैट वाज टाइम टू सेल इन्फोसिस एक्चुअली। लेकिन तब तो मेरे फादर को भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि भाई इस तरह भी देखना पड़ता है क्या, तो नहीं देखा, और सो बी इट, वहां से तो आज ऊपर ही है। पर ऐसा कुछ अगर होता है फ्यूचर में, देन इट इज टाइम टू सेल। तो बाकी 60-70 अभी टाइटन हैज ट्रेडेड ऑलवेज एक्सपेंसिव बाय एनी स्टैंडर्ड। आप देखोगे टाइटन के वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ही है, और वो रहे ही है, यानी फ्रॉम 2011-12 से ही एक्सपेंसिव रहे हैं। तो अगेन आई बिलीव के जो ग्रेट कंपनी होती है उसको मार्केट हाई वैल्यूएशन देता है, प्रीमियम देता है। और इंडिया एक ऐसे कस्प पे है अभी कि जहां पे हम लोग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन विल गो थ्रू द रूफ। वी हैव क्रॉस $2,500 पर कैपिटा इनकम। तो हमने रशिया में देखा था 2001 में जब क्रॉस हुआ, उसके बाद बहुत पैसा बना है। 2006 में चाइना ने क्रॉस किया था, उसके बाद डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बहुत बड़ा था। तो इंडिया ने तो अभी क्रॉस किया है, तो टाइटन जैसी कंपनीज के लिए तो बहुत बड़ा अभी भी रनवे दिख रहा है। तो एट 60-70 पी मल्टीपल आई विल नॉट सेल। और अगेन अगेन सी दूसरी चीज व्हाट आई लुक एट इज कि वेयर दिस कंपनी कैन गो फ्रॉम हियर, उसका मार्केट कैप कहाँ पे जा सकता है। गिव यू वन एग्जांपल, वी हैव बॉट स्टार हेल्थ। तो वी हैव स्टडीड यूनाइटेड हेल्थ कंपनी विच इज इन यूएस। अभी उसको आप देखोगे यूनाइटेड हेल्थ को, तो यूएस में पॉपुलेशन इज अराउंड 33 करोड़। यूनाइटेड हेल्थ का मार्केट कैप है अराउंड आज की तारीख में इट इज 37 लाख करोड़, राइट। और वहाँ की वो मेडिकल इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर यूनाइटेड हेल्थ को वहां पे 37 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल सकता है यूएस में, इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है स्टार हेल्थ, उसका मार्केट कैप है अभी 30,000 करोड़। तो सी द डिफरेंस। और इंडिया का पॉपुलेशन वैसे तो 140 करोड़ है, लेकिन मे बी चलो 140 हम नहीं गिनते क्योंकि 60 करोड़ आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो भी 80 करोड़ इज द टारगेट ऑडियंस फॉर स्टार हेल्थ। And even CRISIL has said in one of its report कि this sector should grow at 20% for next 10 years. तो 30,000 करोड़ में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में सोचते हैं तो बहुत शायद एक्सपेंसिव हमें लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो इट इज चीप एक्चुअली। तो दिस इज हाउ आई लुक एट द कंपनीज एंड दिस इज हाउ आई इन्वेस्ट। Right, Siddharth. So, Siddharth, like you gave example of say pharma companies, right? So, since 2015 onwards, those large cap companies have not performed that well, right?
and they are continuously on the decline, maybe forming a base around this time. So that is again a talk of capital allocation by the management. But because till 2015 they had made the great money, and you had confidence in the management. So how in such cases one is able to find out like the capital allocation is going wrong, and we should sell a company rather holding it for a long period of time? राइट राइट सी अगेन यहाँ पे हम थोड़े लेट हो सकते हैं यानी फॉर एग्जांपल वी वर होल्डिंग लुपिन फ्रॉम 2006 6 से हम होल्ड कर रहे थे तो 2015 तक इट वाज अ बिग बिग मल्टी बैगर फॉर अस और गोइंग वाज गुड एक्चुअली हमें नहीं लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम आएगा थोड़ा बहुत बीच में आ सकता है लेकिन इतना बड़ा सीवियर प्रॉब्लम आएगा वो हमें फिर बाद में वो काफी करेक्ट भी हुआ और फिर यूएस एफडीए प्रॉब्लम्स भी उसमें काफी आए जनरिक का तो आपको सबको पता ही होगा कि यूएसए में जो प्राइस इरोजन हुआ है उसके वजह से वो अच्छा नहीं कर रही है वहां पे तो वी वर लेट इन सेलिंग एक्चुअली और वी सोल्ड इट एट अराउंड 2018-19 तो 3-4 इयर्स का पेन सहन किया हमने और उसके लेकिन वो पार्ट ऑफ द गेम है जैसे मैंने बोला ना सी मिस्टेक्स विल ऑलवेज हैपन और यू विल नॉट बी एबल टू सेल एट द टॉप वो जो बोलते हैं वो शायद फूल बनाते हैं हमें बाकी जनरली कोई टॉप पे तो सेल कर ही नहीं पाता है तो बस अनलेस हमें लगता है कि अभी भी ये थीसिस खराब भी रहने वाला है और उसके सामने आपको बहुत कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिख रही है देन यू शुड शिफ्ट योर कैपिटल बाकी इट इज टफ टू टेक अ कॉल एट दैट टाइम क्योंकि सी सब अच्छा होता है न्यूज भी अच्छे होते हैं इवन कंपनी के मैनेजमेंट भी सब आपको अच्छा ही बताएंगे कि ऐसा कुछ 2 ईयर जब पेन आता है तब भी वो यही बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू रिकवर तो इट इज डिफिकल्ट टू जज एट दैट टाइम और ऐसा भी नहीं है ऐसी कंपनी स्पेसिफिक भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल सिप्ला डिड वेल सन फार्मा का इंडिया बिजनेस तो बहुत ही अच्छा कर रहा था तो ये होता है पर अभी इट इज पार्ट ऑफ द गेम यू हैव टू एक्सेप्ट इट And Siddharth, you made a point that the wealth is created by the top two, three players, and which is right actually. But again, do you think looking for those companies, the valuation comfort is, I mean, of course, in Black Swan events type time, we get the valuation comfort. But again, as you were saying, those companies get premium in the market. So any valuation is not. I mean, investing at any valuation doesn't provide that करेक्ट good करेक्ट return. So करेक्ट what's your take on हाँ that? वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन इसमें ये चीज और सो नाउ व्हाट आई डू इज कि आई विल ट्राई टू बाय ग्रेट कंपनी गोइंग थ्रू अ टफ टाइम जैसे रिसेंटली आई बॉट स्टार हेल्थ तो क्यों आई बॉट स्टार हेल्थ बिकॉज इट वाज लॉस मेकिंग कोविड के वजह से if you look at the performance of Star Health pre-COVID, they were doing 15% ROE, profitable company थी, combined ratio 95% था, claim ratio 65% के नीचे था, so everything was going well. लेकिन then came COVID, and COVID is a once in a 100-year event, right? फिगर्स खराब हो गए उनके, तो इसके वजह से ये सस्ती मिल रही थी हमें एंड दैट इज वाई यू शुड एंटर क्योंकि ये कोविड हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला है तो वही हो रहा है अभी इफ यू सी FY23 दे हैव पोस्टेड अ प्रॉफिटेबल ग्रोथ प्रॉफिट में आ गए ये लोग क्लेम रेशियो इज बिलो 65% कंबाइंड रेशियो इज एट 95% तो जो प्री कोविड था वो लेवल पे ये लोग अगेन आ गए हैं तो दिस इज हाउ आई लुक एट वैल्यूएशन के अच्छी कंपनी है बट गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड इज अ टाइम टू बाय again I will give you one more example crisil in year because of some one off उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट उनको लॉस में बेचना पड़ा था और उसके वजह से लॉस आ गया था PNL में तो मार्केट ने 80 रुपीज का शेयर 10 रुपीज कर दिया था इट वॉज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी एट टाइम क्योंकि ऑपरेटिंग बिजनेस तो अच्छा ही कर रहा था सिर्फ ये वन ऑफ इवेंट थी तो ऐसा कुछ अगर होता है तो वो टाइम पे हमें एकदम बाउंस करके बाउंस पूरा ले लेना है जो भी हमें लेना है तो और वही 10 रुपीज का शेयर आज आई थिंक 3300 या 3200 का भाव है तो दिस इज हाउ आई लुक एट द बिजनेसेस नाउ यू शुड ट्राई टू बाय ग्रेट बिजनेसेस गोइंग थ्रू अ टफ टाइम टू गेट कंफर्ट इन वैल्यूएशन
Right. And for our attendees, the names which are taken during the conversation are purely for illustrations. Please don't construe any name as a buy, sell, or hold recommendation from our end. And these are purely for educational purposes. Yeah. सॉरी, मैं जी एकदम, मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, तो शायद ये सब मैं इतना सोच के नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या पर टू ऑल द अटेंडीज आई वुड से कि ये सब जो कंपनीज डिस्कस हो रही है वो मेरे पोर्टफोलियो में है, फैमिली के पोर्टफोलियो में है, हमारे पीएमएस में है। और जैसे प्रिंस ने बताया कि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन, रिसर्च, डोंट रिलाई ऑन मी एट ऑल। तो ये फुल डिस्क्लोजर में देना चाहता हूँ। राइट। सो मीत भाई, आपका कोई इनपुट या कोई सवाल सिद्धार्थ भाई से? Hello, Siddharth bhai. Yes, Meet. Hi, how are you? I am doing good. Thank you, Prince bhai, for giving me the opportunity. It seems like Surat Investing Conclave. मतलब सिद्धार्थ भाई है, अरविंद भाई है, तेजस भाई है, तो everyone, सब लोग यहाँ पे है. So मतलब what can I say about Siddharth bhai? He is an excellent teacher, investor, thinker, but over that a very humble and excellent human being. मतलब I am purely a intelligent fanatic guy. मतलब mad love for excellent human brains. So I focuses on stocks as well, where I found businessmen who are purely focused on one single thing. मतलब उनको अर्जुन की तरह पक्षी की सिर्फ एक आंख दिखनी चाहिए. So Siddharth Bhai is one such investor whom I can bet for longer term. मतलब like Siddharth Bhai purely focuses on long term investing, extensively focuses on terminal value, and majority of his portfolio and wealth is in equities only. So मतलब single focus guy, like Arvind sir as well, who focuses on hidden gems very early on in their cycle, and उनका भी majority part of the portfolio and net worth is in equities. Same goes with Tejas Bhai as well. Excellent human being. So I'm privileged to have them at my arm's length. Like Siddharth Bhai is holding Titan, which is 65x for him, and many such stocks he's holding. Arvind sir identified HLE, Shivalik, RSCL very early in their cycle. Tejas Bhai, who is holding and averaging up Varun beverages since IPO. So, in a nutshell, इन लोगों के साथ बुड्ढा होना है. आई नो दिस गाइज विल क्रिएट ह्यूमंगस वेल्थ इन दर करियर. सो अच्छे लोगों का हाथ ना मिले तो ठीक है, उंगली पकड़ लो. लाइक गुड गाइज सेज यू कैन मेक मनी बाय डूइंग टू थिंग्स, आइदर रीड और मीट. सो मिलो या पढ़ो. आई एम हैप्पी टू हैव सच गुड ह्यूमंस इन माय लाइफ एंड इन्वेस्टिंग सर्कल. And cheers, guys. Keep compounding. Wish everyone a great wealth creation journey ahead. Thank you. Cheers. Thank you so much, Meet, and I can vouch for this also because जिसके भी साथ मेरा interaction हुआ है, I have a same feeling of the person are humble and so grounded that you can reach them out anytime. And Tejas was the person who introduced Siddharth Bhai to me, and I persistently asked Siddharth Bhai to come on the forum, and finally we have him. So we got one speaker, Sanjeev ji. Sanjeev ji, आप unmute करके अपना सवाल रख सकते हैं. नमस्कार सिद्धार्थ भाई, मेरा 2-3 क्वेश्चन रहेगा, मैं एक एक करके पूछता हूँ. जैसे आप अपना पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफिकेशन कितना परसेंटेज में करना चाहिए एक स्टॉक में? सी, जैसे मैंने एक पॉइंट पहले बताया था कि पब्लिक, ये दोनों में थोड़ा फर्क रहता है. तो जैसे बात करूंगा तो उसमें मैं वेटेजेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम कंफर्टेबल विद दैट स्टॉक. तो फॉर एग्जांपल टाइटन इज 30% ऑफ माय पोर्टफोलियो, इन्फोसिस इज 25% ऑफ आवर फैमिलीज पोर्टफोलियो. तो और हम लोग उसको बढ़ नहीं देते हैं, हम लोग ट्रिम भी नहीं करते हैं क्योंकि वी आर कंफर्टेबल. आज इन्फोसिस 52 वीक लो पे है, टाइटन 52 वीक हाई पे है, लेकिन कोई भी शेयर में हमने बेचा नहीं है. So this is how we think on diversification. और top 5 stocks constitute around 75-80% of the portfolio. तो फिर सब छोटी छोटी पोजीशंस होती है और वो बस इसलिए होती है कि ट्रैक कर सके हम. तो अगर उसमें से अगर कोई अच्छी चीज बनती दिखती है या फिर ग्रेट बिजनेस है लेकिन वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल नहीं है, और जब वैल्यूएशन कंफर्टेबल होंगे तो हम उसमें भी पोजीशंस ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए वो टेल रखते हैं हम पोर्टफोलियो में. पर मेजॉरिटी, जैसे मैंने बताया, 4-5 स्टॉक्स कंस्टिट्यूट 75-80%. ये हुआ प्राइवेट इन्वेस्टिंग का बात. और इसमें से अगेन दूसरी चीज के इसमें ऐसा नहीं है कि कैपिटल हमने बहुत डाल दिया है, इनको हमने ग्रो करने दिया है. यानी
इन्फोसिस में कुछ इतना हाई कैपिटल डाला ही नहीं था, लेकिन बहुत बढ़ गया, लेकिन बेचा नहीं, इसके वजह से इट वेंट टू 30%, 25%। इसी तरह टाइटन में भी वी इन्वेस्टेड अराउंड, फैमिली में बहुत कम, यानी 3-4% ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया था, एंड इट हैज बिकम ह्यूज 30%, बिकॉज वो 65-68 बैगर बन गया है। तो बस ट्रिम नहीं किया, इसकी वजह से बना है। तो ये हुआ प्राइवेट इन्वेस्टिंग। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इन्वेस्टिंग, वहां पे हमें थोड़ा रिस्क का और इम्पोर्टेंस रखना पड़ता है। तो वहां पे आई जनरली डोंट गो अबाउट 10% ऑफ इन एनी स्टॉक। तो अगर 10-12% तक जाता है तो फिर वी स्टार्ट ट्रिमिंग, और उसमें वी बाय अराउंड 20-25 स्टॉक्स अक्रॉस 12-13 सेक्टर्स। तो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। तो ओवरऑल रिस्क मिटिगेशन में उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट मनी, क्योंकि प्राइवेट में हमें किसी को आंसर नहीं देना है। यस सर, संजीव जी, सेकंड क्वेश्चन योर। या सर, जैसे आपके पास मल्टीबैगर टाइटन है तो 2006 से आप होल्ड कर, तो सालों साल जब वो बढ़ता जाता है तो उसको आप बढ़ाते रहते हो कि वो और कोई स्टॉक में बढ़ता अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल टाइटन 2006 में लिया, फिर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और सेंसेक्स वेंट डाउन फ्रॉम 21,000 टू 8,000, हमारा टाइटन का कॉस्ट प्राइस जो था वो प्राइस पे आ गया था। इट वाज अ थ्री बैगर बिटवीन दिस 2 years, 2006 से 2008 में, और थ्री बैगर का और फिर यानी हमें लगा कि 2 years में फंडामेंटल्स तो इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस वो नीचे आ गया है, तो वी एडेड सम एट दैट टाइम। फिर अगेन 2012 टू 2016 और 16 एंड आई वुड रादर से, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो ये 5 years में टाइटन हैज गिवन हार्डली 5% CAGR रिटर्न। इफ यू चेक, उसका भाव कुछ 230 था 2012 में, एंड 2016 में इट वाज अराउंड 300। तो एफडी से भी कम रिटर्न दिया था। तो एट दैट टाइम अगेन कन्विक्शन कहाँ से आया, तो एवरी कॉन कॉल आई यूज टू अटेंड। एक एक कॉमिक फनी चीज आपको बताता हूँ कि आई थिंक आई एम अटेंडिंग टाइटन कॉल कॉल फ्रॉम 2011 या 12। तो हर बार मैं अटेंड करता हूँ और राकेश झुनझुनवाला अटेंड करते थे, और हर बार वो क्वेश्चन पूछते थे, और मैंने आज तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो बस उसमें कन्विक्शन ये आता था कि एवरी क्वार्टर दे वर गेनिंग मार्केट शेयर, और बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री हेडविंड्स टाइटन वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। यानी आई कैन से कि क्या होता था कि इंडस्ट्री डीग्रो होती थी 10% से, और टाइटन का ग्रोथ नहीं आता था, 0% ग्रोथ आता था। एक्चुअली टाइटन वाज आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री। लेकिन मार्केट क्या देखता है, मार्केट देखता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में टाइटन इज नॉट ग्रोइंग, सो इट इज नॉट अ गुड कंपनी, तो टाइटन को पनिश करते थे, नहीं चलता था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या दिख रहा था कि अगर टेलविंड आएगी जब भी ये सेक्टर में, तो टाइटन विल आउट परफॉर्म लाइक एनीथिंग, और वही हुआ 2016 नोटबंदी के बाद। तो दैट 300 हैज बिकम 2700 टुडे, और इवन कोविड में इट वेंट डाउन फ्रॉम 1500 टू 800। तो ये तो होता रहता है, और तब आपका अगर कन्विक्शन है वो कंपनी अच्छा कर रही है, तो जैसे मैंने बोला, ग्रेट कंपनी गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी। राइट सिद्धार्थ। सो संजीव जी, आपके सवाल हो गए हैं, और डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आल्सो? Yeah, one more. See, in old times, say 2006, 7, 10, even up to 15, 16, there were, you could pick up good companies that were growing and becoming multi-bagger. And उसमें आपने जो चीजें बताई, जो आप देखते चार्जेस, I fully agree. I just want to add कि वहाँ पे I also look for a company that pays consistent dividend for last 10 years. And also if it gives bonus at least once, if not twice in the last 10 years, that also is a good sign of a company. But आज के दिन में 2023 में, what is the criteria and how do you find where most of the sectors are penetrated and there are good players to find a multi-bag? What should be the criteria? आपने लास्ट लाइन एक्चुअली क्या पूछा, मुझे समझ नहीं आया। कि लास्ट में आज के दिन में आपने जो मल्टी बैगर्स खोजे फॉर टू फाइंड अ कंपनी लाइक टाइटन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टुडे विद सो मच ऑफ पेनिट्रेशन इन द मार्केट इन ऑल सेक्टर्स। तो वो कैसे आज के दिन में हम खोजे उसको? राइट। सो सी, मैंने आपको अगेन डिस्क्लोजर के साथ बताता हूँ कि रिसेंटली आई एम बाइंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, और ऐसा नहीं है कि आज से बाई कर रहा हूँ मैं, जब से आईपीओ तब से बाई कर रहा हूँ।
तो what is the thesis behind it? तो Star Health is growing at around 20%. अभी लास्ट मंथ में दे grew at around 24%. और they are focused on retail health insurance. तो retail health insurance is a profitable business as compared to group insurance. तो group insurance अच्छा business नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पे लास्ट ईयर कॉन्शियसली उन्होंने ट्रिम किया, तो इसके वजह से थोड़ा ग्रोथ कम आया. लेकिन नाउ अगेन दिस ईयर they have said कि they will focus on group insurance but in SME segment, कि जहाँ पे एम्प्लॉइज कम है, बड़े कॉर्पोरेट्स पे फोकस नहीं करना है, छोटे SME पे फोकस करना है. तो पहली चीज आई ग्रोथ. उसके बाद मार्केट शेयर डोमिनेंस होना चाहिए. तो स्टार हेल्थ का मार्केट शेयर इज अराउंड 34%. सेकेंड बेस्ट इज एट अराउंड 10-11%, HDFC अर्गो. तो अगर इट इज लाइक गोरिल्ला इन्वेस्टिंग, जो उत्पल सेठ बताते हैं कि आपका स्टॉक गोरिल्ला होना चाहिए. देयर आर मेनी मंकीज इन द जंगल बट देयर आर वेरी फ्यू गोरिल्लाज इन द जंगल, राइट. तो गोरिल्लाज जब मिलते हैं और फिर वहां पे वैल्यूएशन आपको अच्छी मिलती है, तो गो एंड पाउंस ऑन इट. फिर दूसरा, जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन इंडिया का 80 करोड़ टारगेट ऑडियंस है. तो अगेन मुझे लगता है कि ह्यूज अंडर पेनिट्रेशन. टुडे इन इंडिया 63% ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर डन इन हॉस्पिटल्स इज आउट ऑफ पॉकेट. तो अगेन इंश्योरेंस अगर लोगों के पास है तो भी वो इनफ नहीं है, तो वो भी उनको बढ़ाना है टिकट साइज. फिर दूसरा मुझे क्या लगता है कि इंश्योरेंस में खास करके रिटेल इंश्योरेंस ऐसी चीज है, मेडिकल इंश्योरेंस, कि जहां लाइफ टाइम वैल्यू LTV जो बोलते हैं. तो अगर आप कार लेते हो तो कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो हर साल कार की वैल्यू कम होती है, इसके वजह से प्रीमियम भी आपका कम होगा. लेकिन हम लोग जब अपना इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, तो वी आर एन एप्रिशिएटिंग एसेट, राइट. तो हम तो हर साल प्रीमियम हमारा ऊपर जाएगा. तो अगेन दिस, बिकॉज ऑफ दिस LTV फॉर स्टार विल बी हाई, राइट. लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो हाई ऊपर रहेगी. फिर उनका हॉस्पिटल नेटवर्क आप देखिए तो इट इज अराउंड 12,800 हॉस्पिटल नेटवर्क. अभी तो शायद उससे भी ज्यादा हो गया है. अगर आप उसको यूनाइटेड हेल्थ से कंपेयर करोगे US में, तो दे हैव अराउंड 6,500 हॉस्पिटल नेटवर्क. तो अगेन वहां पे मुझे एक अच्छी डोमिनेंस दिख रही है. फिर दूसरा कि वो लोग खुद थर्ड पार्टी अश्योरेंस करते हैं, यानी फ्रॉड्स को वो लोग खुद पकड़ते हैं, उनकी खुद इंटरनल टीम है. दूसरे जो PSUs हैं इंश्योरेंस में, ओरिएंटल या न्यू इंडिया, वो सब जनरली आउटसोर्स करते हैं थर्ड पार्ट. तो उसके वजह से अगेन दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स, और इसके लिए वजह से उनका क्लेम रेशियो, कंबाइंड रेशियो इज वेरी हाई. तो अगेन स्टार विन्स ओवर देयर. तो ये सब पॉइंट की वजह से 95% से ज्यादा उनका रिटेंशन रेशियो है. तो अगेन जो उनके पास एक बार आता है, फिर वो अगेन प्रीमियम हर साल रिन्यू उनके पास ही कराता है. तो ये सब होने के बाद भी इट इज अवेलेबल एट 30,000 करोड़ मार्केट कैप, और उसके सामने यूनाइटेड हेल्थ इज अवेलेबल एट 37 लाख करोड़ मार्केट कैप. तो और ये ऐसा बिजनेस है कि जैसे बैंक्स हो गया, तो बैंक्स नीड कैश. रॉ मटेरियल फॉर बैंक इज कैश, मनी, राइट. इंश्योरेंस में दे डोंट नीड मनी. तो मुझे तो लगता है कि दे विल स्टार्ट थ्रोइंग कैश आफ्टर सम टाइम. तो ये सब पॉइंट्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी अबव 15-16%. तो ऐसे मैं देखता हूँ कंपनीज को. तो मैं शॉर्ट टर्म नहीं देखता हूँ. अगर आज वो 30,000 का 20,000 मार्केट कैप हो जाता है तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट लूजिंग देयर मार्केट शेयर ड्रास्टिकली, या कुछ वो लोग कल उठ के कुछ दूसरा करने लगे इंश्योरेंस में, तो मुझे थोड़ा फिर से सोचना पड़ेगा. बट एज लॉन्ग एज दे आर इन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, दे आर डूइंग वेल, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, तो शेयर प्राइस नीचे आता है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. और यहाँ से वो क्यों नहीं ऊपर जा सकता है, यानी आई सी के दिस कंपनी कैन बिकम बिग. तो इस तरह मैं देखता हूँ. एंड अगेन सी, फुल डिस्क्लोजर, आई एम होल्डिंग, आई एम बाइंग, तो टेक मी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. Right, Siddharth. So, Siddharth, थैंक यू सर. सॉरी, थैंक यू सर एंड थैंक यू प्रिंस. थैंक यू संजीव जी. सो सिद्धार्थ, जैसे कंपनीज का आपने बताया, तो मान लो आप किसी थेसिस के साथ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग डज यू गिव टू दैट कंपनी सो एज टू, आई मीन, कुछ होता है ना कई बार कि आपने कुछ सोच के थेसिस आपके दिमाग में थी, वो काम नहीं कर रही है, राइट. तो आप उसका कितना टाइम मतलब देखते हैं बिफोर सेलिंग योर पोजीशन? कई बार होता है ना हम गलत हो गए, तो करेक्ट. उसको कितना मतलब? हाँ, सी, मैं तो बहुत लंबा टाइम देता हूँ. आई गिव मैनेजमेंट लॉट ऑफ रोप.
तो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आई विल गिव यू एंड एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल रिलैक्सो फुटवेयर. आई हैव बॉट इट एट अराउंड 2013 और संजय बख्शी सर जो प्रोफेसर है उनका नोट मैंने पढ़ा था वो टाइम पे और वो नोट ही इतना बढ़िया था कि मुझे और कुछ रिसर्च करना ही नहीं था एंड आई स्टार्टेड रिलैक्स. और फिर इसमें भी क्या होता है वंस यू स्टार्ट बाइंग फिर आप जैसे जैसे क्वार्टर्स आते जाते हैं वैसे वैसे आपका कन्विक्शन और बढ़ता है क्योंकि देन यू स्टार्ट नोइंग द कंपनी बेटर एंड बेटर. पहले टाइम में आपको इतना अच्छा नहीं पता चलता है लेकिन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर देन यू अंडरस्टैंड द कंपनी मोर एंड मोर एंड मोर, राइट. तो इस तरह से मैंने किया था. अभी रिसेंटली आप सबने देखा होगा इवन ट्विटर पे भी मैंने बहुत डिबेट्स देखी थी कि लास्ट क्वार्टर जब रिजल्ट आया था Q3 का तो बहुत खराब रिजल्ट आया था और सबने बोल दिया था कि अभी रिलैक्सो का बिजनेस मॉडल हैज ब्रोकन, वैल्यूएशंस आर वेरी हाई, तो ये बेच देना चाहिए या ये शेयर होना ही नहीं चाहिए किसी के पास और यही सब चल रहा था, राइट. लेकिन जब मैंने मेरा वो डिफरेंशियल इंसाइट लगाया कि मेरे हिसाब से ये सही चीज है तो मैंने दो चीज देखी इसमें. एक चीज क्या देखा कि रिलैक्सो इज इन मास सेगमेंट और मास सेगमेंट में अगर आप इंडिया में अभी देखोगे पोस्ट कोविड तो इंडिया इज गोइंग थ्रू अ के शेप रिकवरी. के शेप रिकवरी माने एक एलिट सेगमेंट है या हायर मिडिल क्लास सेगमेंट है, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल, उनको इन्फ्लेशन नड़ नहीं रहा है तो उनका परचेसिंग पावर और बढ़ा है. तो इसके वजह से यू हैव सी इनके इथॉस जैसी कंपनीज जो लग्जरी वॉचेस बेचती है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, 30-35% ग्रो कर रही है. इवन ये मेट्रो शूज दे आर ग्रोइंग एट 30% क्योंकि उनकी टिकट साइज इज हायर देन 2500 रुपीज. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलैक्सो तो वो मास सेगमेंट को केटर करता है यानी ट्रक ड्राइवर्स हो गए, गरीब लोग हो गए, तो वहां उसकी टिकट साइज इज हार्डली 150 रुपीज. तो दे आर नॉट डूइंग वेल. तो क्यों? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आ रही है वो हमें विजिबल है. तो इसकी वजह से तो दिस इज हेडविंड, ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू नहीं है. ये पहला पॉइंट था मेरा. अगेन रिलैक्सो में ही एक ब्रांड है स्पार्क्स, तो स्पार्क्स इज ग्रोइंग एट 30% क्योंकि वो हायर सेगमेंट में है तो दे आर डूइंग वेल. तो ये एक चीज थी. दूसरी चीज क्या हुई थी कि हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट वेंट थ्रू द रूफ और ये लोग बहुत बड़ा रॉ मटेरियल परचेस करते हैं क्योंकि 18 करोड़ वो लोग पर ईयर सेल करते हैं फुटवेयर. तो 18 करोड़ अगर आपको फुटवेयर सेल करने हैं तो यू नीड अ वेरी हाई इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, राइट. तो इन्वेंट्री उनके पास बहुत पड़ी थी और फिर अचानक से एकदम उन्होंने हाई प्राइस में ली थी और फिर अचानक से एकदम नीचे चली गई रॉ मटेरियल की कॉस्ट. तो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे उनके लिए एक बेनिफिट हो गया. तो शॉर्ट टर्म में दे लॉस्ट मार्केट शेयर बट आई ऑल्सो थॉट कि दिस इज टेम्पररी इन नेचर. और जो रमेश दुआ जी थे उन्होंने भी CNBC इंटरव्यू में यही बताया था कि वी विल गेनिंग आवर मार्केट शेयर सूनर. और यही हुआ. अभी Q4 का आप रिजल्ट देखो तो दे हैव स्टार्टेड गेनिंग मार्केट शेयर, दे हैव डन वेल. स्टिल हेडविंड्स आर देयर लेकिन जो वो प्रॉब्लम था रॉ मटेरियल वाला वो निकल गया है अभी ऑलमोस्ट और विदाउट एनी डिस्काउंट्स दे हैव बीन एबल टू गेन मार्केट शेयर. तो मैं इस तरह देखता हूँ कंपनी को और इसलिए मैं थोड़ा लंबा टाइम देता हूँ. सी हमारे में और एंटरप्रेन्योर्स में फर्क क्या होता है कि हम लोग बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हम लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन में नहीं मानते हैं. एंटरप्रेन्योर्स हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन में मानते हैं और वो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको सर्वाइव होना है, उनको लॉन्ग टर्म देखना है. तो वी नीड टू गिव देम वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा थोड़ा. और इस तरह मैं देखता हूँ और फिर उसमें कोई बार लेट भी हो जाते हैं इन सेलिंग पर सो बी इट, वो होता है. पर फिर ऐसे बिजनेसेस में आई हैव नॉट सोल्ड रिलैक्सो इवन अ सिंगल शेयर, आई एम स्टिल होल्डिंग. तो दिस इज हाउ आई थिंक. Right. I tell you my experience. Like Relaxo has many 4-5 plants nearby my place, and so I happened to meet its worker once. So his experience was like बहुत अच्छा company है, overtime भी देता है, पैसे नहीं काटता है, और they were working in I mean round the clock, 3 shift में काम हो रहा है. तो these are the things which matter for a company. And of course I don't own Relaxo by any means, just an observation. Right. So again, DW so one by one, you guys can go on with your questions. First, I don't know like use Garib word or Amir word because Indian economy we below the line, above the line. That's it. I hate this word Garib Admi or Amir Admi. I just question this particular word. Second,
You know, I made Mr. a business plan. Mr. Garg, are you asking any question or making a statement? Please clarify first. I am asking a question, Yeah, but please after go ahead. making a Please go question, ahead. Yeah. I made a presentation for the company of for the Maharaja Gat Singh, His Highness of Jodhpur. I made a break-even plan for 5 years. Should I look for profitability or the break-even for the first 5 years? Because in the stock market or any in the business of the entire world of the economy, you have to look for the survival of the business. Will able to survive of the business because your CAGR may be 30%, 40% in the first 5 years. Will you be able to survive of the business? You need to understand. That's why I want to ask कि अगर आपने 30% का CAGR 3%, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में देख लिया, तो उसके बाद आप कमिट करते हो कि ये कंपनी सेम CAGR पे ग्रो करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस निकल गया मुंह से, तो सॉरी फॉर दैट. सेकंड जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है, पर सी आई डोंट फोकस ऑन CAGR और मुझे वो नहीं आता है. यानी जैसे मैंने बताया 2012 से 16 में टाइटन गेव 5% CAGR रिटर्न, तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट. तो मैं इतना ये नहीं देखता हूँ कि भाई आई लुक एट द बिजनेस फंडामेंटल्स के वो कैसे कर रहे हैं रादर देन लुकिंग एट स्टॉक मार्केट रिटर्न. So next is Pramesh. Pramesh ji, you can ask your question or any input on your end. Yeah, Siddharth, if you have answered this question, then I'll see you on the recordings. I mean, I will have heard the recordings again. My question is with respect to how you start scanning the companies. So you are, I mean, you believe that there are certain sectors that you are good at to analyze, or you start randomly looking at companies and then something get interested and you go deep dive into it, or there are some sectorial tailwinds which can happen around certain economic periods, like right now capex is or capital goods is one of the segments. So you then deep dive those companies and ride those sectorial tailwind. That's my question number one. The second question is that you just mentioned a company called Relaxo. You also mentioned about Titan. So do you, within those particular segment, do you also look at other companies? Because if Relaxo has to do well, I'm sure Bata or any other company also might do well. Or when their IPOs come, you realize, okay, Khadim abhi acha lag raha hai, maybe that I'll also get into those segments, because you already know very well how Relaxo is operating, or one particular company that you understand the business very well. So do you also invest, look into those companies? Yeah, very very good questions. So फर्स्ट क्वेश्चन के मैं कैसे स्टॉक देखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो से इट इज मोर ऑफ अ रैंडम एक्सरसाइज. सो पहले मैं ये बोलने में थोड़ा झिझकता था, लेकिन आफ्टर आई हर्ड मोनिश पबराई सेइंग कि आई एम अ शेमलेस क्लोनर, तो मुझे भी लगता है कि आई एम ऑल्सो शेमलेस क्लोनर. सो मैं देखता रहता हूँ कि अभी जैसे मीत भाई ने बताया, मीत भाई मुझे कोई आइडिया देगा तो आई विल लुक इनटू दैट कंपनी. प्रिंस मुझे कोई आइडिया देगा तो आई विल लुक इनटू दैट कंपनी. इफ सम गुड इन्वेस्टर इज बाइंग सम कंपनी, सम म्यूचुअल फंड्स इज बाइंग सम कंपनी, तो मैं स्क्रीनर पे कम करता हूँ काम, मैं रेंडमली ज्यादा देखता हूँ. अगेन मैं सेक्टर वाइज भी इतना नहीं देखता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स इज डूइंग वेल सो आई शुड लुक एट दैट सेक्टर. नहीं, मैं इस तरह नहीं देखता हूँ. मैंने जैसे बताया कि आई जनरली लुक फॉर ग्रेट कंपनीज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. तो टफ टाइम में तो हेडविंड्स होती है, वहां पे अच्छा टाइम नहीं होता है एक्चुअली, तो और इग्नोर्ड भी होती है ज्यादातर वो कंपनीज या सेक्टर. तो इस तरह आई ट्राई टू लुक एट द कंपनीज. स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, जैसे रिलैक्सो का मैंने बताया प्रोफेसर संजय बख्शी थ्रू मुझे पता चला था, टाइटन राकेश झुनझुनवाला जी से पता चला था. तो मोस्ट ऑफ द आइडियाज क्लोन्ड होते हैं.
दिस इज हाउ आई लुक एट द कंपनीज. सेकेंड क्वेश्चन आपका ये था, मैं भूल गया क्या था सेकेंड क्वेश्चन. I mean, you Same company. same company like Relaxo you already found. So हाँ, राइट. हाँ, सी यस, आफ्टर आई बाय दैट कंपनी या फिर बिफोर इवन बाइंग दैट कंपनी, हम लोग उसके पियर्स को तो देखते हैं. तो जैसे टाइटन के सामने मैंने हर एक पियर को अभी भी मैं देखता रहता हूँ. कल्याण ज्वेलर रिसेंटली लिस्ट हुआ है, राइट. तो आई लुक एट कल्याण नंबर्स, वो क्या कर रहा है. अभी रिसेंटली मैंने देखा उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इन सिंगल डिजिट. दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 16% लास्ट क्वार्टर, और उसके सामने टाइटन ग्रो एट 23-24%. तो मैं देखता हूँ कि भाई पियर कैसा कर रहा है. इवन रिलैक्सो के सामने आई लुक्ड एट मेट्रो ब्रांड इज आल्सो अ वेरी गुड कंपनी. फिर अगेन खादिम आईपीओ आया था, तब उसको भी हमने देखा था. पर सी जनरली एक बार मैंने कोई कंपनी ले ली है तो इट इज लाइक मैरिंग दैट कंपनी. तो अगेन वो एक कोट बहुत अच्छा है कि शादी से पहले जितनी तहकीकात करनी है कर लो, लेकिन एक बार शादी हो गई फिर हर बात पे डिवोर्स मत करो. तो आई ऑल्सो अप्लाई दिस इन माई इन्वेस्टिंग के फिर थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म हिकअप्स आते हैं तो हमें डिवोर्स नहीं देना है. Thanks, Siddharth. That was quite good explanation. Nice. Thank you very much. Thank you. So Siddharth, although you keep companies for long, it appears technical doesn't play any role in your investment. But since you are also managing public money, तो technical का कुछ role रहता है at least at the point of selling or maybe during accumulation. सी टेक्निकल एनालिसिस मुझे पर्सनली नहीं आता है, लेकिन आई हैव अ टीम. तो उसमें इंटर्न्स खास करके जो होते हैं वो अच्छा टेक्निकल देखते हैं. तो जब भी मुझे कोई स्टॉक लेना है या बेचना है तो मैं एक बार उनसे उनका व्यू ले लेता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, ये मेरे को लेना है तो भाई ये भाव बराबर है या और नीचे मिल सकता है. या फिर जब सेल करना है तो अगेन आई टेक देयर व्यू. तो व्यू लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, राइट. तो पर मैं खुद पर्सनली नहीं देखता हूँ इतना. And macros का कोई role रहता है like investment decisions में, और since your investment are for long term, I don't see कि ज्यादा रहता होगा. But again, I mean, since public money management might have some sense on it. सी मैक्रोज का नॉलेज होना चाहिए पर उससे डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगेन कोविड के टाइम पे जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस जो दिन पे किया था उसी दिन मार्केट ने बॉटम बना दिया था. लेकिन उसके आगे के 15 दिन, उसके आगे के 15 दिन किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अ इन्वेस्टर शुड हैव इज टू बी एन ऑप्टिमिस्ट. तो अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हो तो आप वो टाइम पे होल्ड ही नहीं कर पाते. आपको लगता कि अभी तो वर्ल्ड खत्म हो जाने वाली है या क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है. एंड आई हैव सम क्लाइंट्स के वो टाइम पे उनका मुझे फोन आया था, उन्होंने बोला था कि 50% हम कैश कर देते हैं, ये कर पोर्टफोलियो एक बार बेच देते हैं फिर देखते हैं क्या करना है. क्योंकि सबको लग रहा था कि अभी ये लंबा चलने वाला है, और एक्चुअली कोविड लंबा ही चला लेकिन मार्केट ने उसको अलग तरीके से लिया. तो सी काफी बार ऐसा होता है कि मैक्रो इफ यू आर इवन एबल टू प्रिडिक्ट इट राइट, लेकिन स्टॉक मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करेगा वी डोंट नो. तो अगेन इन 2000 आई थिंक 16 एंड जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी दिन मिस्टर ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन रिजल्ट था. तो सब तब ऐसा बोल रहे थे एनालिस्ट लोग कि अगर ट्रम्प आएगा तो मार्केट टूट जाएगा, और एक्चुअली ट्रम्प आया और मार्केट फिर बाद में बढ़ गया. तो इवन दो इफ यू आर राइट on the macros, but how market will react you don't know. So we should not rely too much on macro, or don't try to take decisions based on macro. तो ये मेरा पॉइंट है. एक दूसरा भी एक पॉइंट बताना चाहता था कि काफी बार हम लोग माइक्रो में भी इतना एनालिसिस पैरालिसिस कर लेते हैं कि जिसके वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाते हैं. जैसे अगेन एग्जांपल देता हूँ आपको कि 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया था, और मोस्ट ऑफ द लोग को ये पता नहीं होगा. 1994 में इन्फोसिस ने बॉम्बे में एक एनालिस्ट मीट की थी वो जमाने में 1994 में, और वहां पे 1994
में उन्होंने ये बताया वो एनालिस्ट मीट में कि इन्फोसिस का जो नंबर 1 क्लाइंट है उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अच्छा मार्जिन नहीं दे रहा है। और उस वो जो नंबर 1 कंट्रीब्यूटर था वो 25% ऑफ रेवेन्यू था फॉर इन्फोसिस। अभी सोचो यही चीज आज इन्फोसिस अनाउंस करे कि मेरा नंबर 1 क्लाइंट जो 25% रेवेन्यू दे रहा है मुझे, उसको हम निकाल रहे हैं क्योंकि वो मार्जिन अच्छा नहीं दे रहा है और वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज के लिए अच्छा नहीं है, शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है, तो हाउ विल मार्केट रिएक्ट? मुझे लगता है सर्किट लग जाएगी, लोअर सर्किट। लेकिन 1994 में ये जब एनालिस्ट मीट में उन्होंने बोला तो एनालिस्ट टुक इट वेरी, ये अच्छी तरह लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई बताता ही नहीं है, तो आपने इतने ट्रांसपेरेंट रहे तो वी सैल्यूट यू। और फिर वो स्टॉक नहीं टूटा था वो टाइम पे। और वही मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने एनालिसिस पैरालिसिस किया होता तो शायद वो बेच देता इन्फोसिस 94 में, और बेस्ट रिटर्न इन्फोसिस का उसके बाद ही आया था। तो सी काफी बार ऐसा भी होता है, तो हमें इस पर्सपेक्टिव से भी देखना है। हामिद भाई, Siddharth bhai, if you can share how stringent your checklist is, like post-COVID, how many stocks you have bought in your personal portfolio or you have sold? First of all, Amit, thank you for telling so many good things about me. But actually, I don't deserve that. You also know that. You are a very good friend, so तू अच्छा ही बोलेगा. See, कोविड के बाद सी मेरे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं. माय टर्नओवर रेशियो इज वेरी वेरी लो. Very few stocks I have bought and hardly I have sold anything. तो जो नया पैसा आता है वो मेरे सैलरी से ही आता है और वही मैं इन्वेस्ट करता जाता हूँ. तो इतना कुछ खास बताने के लिए नहीं है उसके बाद का. right? एंड चेकलिस्ट यू सेड ना. हाँ, checklist. Yes, Siddharth bhai. हाँ, सी चेकलिस्ट में यानी अगेन सी ये एक इशू मैंने मेरे इसमें ही देखा है कि विथ एक्सपीरियंस आप लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट मनी इन सो मेनी स्टॉक्स अर्लियर. मैंने अभी लिस्ट भी बनाया था. 1 मिनट, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल. तो लास्ट डिकेड में आई लॉस्ट मनी ऑन पुंज लॉयड, बिलकेयर, भूषण स्टील, ऑर्चिड फार्मा, ए टू जेड इंफ्रा, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक्स, अल्फा जियो, साउथ इंडियन बैंक, ऑप्टो सर्किट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इवन ऑन वंडरला हॉलीडेज. तो सी बहुत और भी लिस्ट होगा शायद, ये तो मैंने एकदम फास्ट बनाया था. तो कहने का पॉइंट ये है कि ये सबसे मैंने सीखा क्या कि भाई या तो ये कंपनीज में डेट ज्यादा था और वो उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना अच्छा नहीं था और इसलिए वो लोग ने पैसा नहीं बनाया, या फिर मिस गवर्नेंस था, अच्छा गवर्नेंस नहीं था. तो यानी ऐसे ऐसे पॉइंट से हम लोग एक चेकलिस्ट बनाते जाते हैं कि भाई हाई डेट तो से नो नो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है पास्ट में तो नो नो, फिर वल्नरेबल इंडस्ट्री है नो नो, सिक्लिकल इंडस्ट्री है नो नो. तो ऐसे चेकलिस्ट बनाते बनाते फिर क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक आप शायद आएंगे आपके रेडार में लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, और वो शायद आपको काउंट भी कर जाए आगे जाके. तो मेरा पॉइंट ये है कि सी ओपन माइंड रखना चाहिए. बहुत सारे चेकलिस्ट बना दोगे तो फिर ऑलमोस्ट आपका यूनिवर्स बहुत छोटा हो जाएगा. तो रादर देन डूइंग दैट थोड़ा ओपन माइंड रखना चाहिए और थोड़े स्टॉक्स ऐसे भी लेने चाहिए कि जहाँ पे यू शुड नो द रिस्क, पर उसका मतलब ये नहीं है कि यू इग्नोर एवरीथिंग. तो सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस के जहाँ सिक्लिकल इन नेचर है, जो मेरा कंपिटेंस नहीं है तो मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे. फिर इसी तरह जैसे वैल्यूएशन को कैसे देखना चाहिए तो वो मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ. तो काफी चीजें इस तरह हम देखते हैं. एंड दिस इज हाउ. लेकिन ऐसा मैंने चेकलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं रखा है कि एकदम स्ट्रिंजेंट बन जाओ कि भाई ये है तो चाहिए ही नहीं, ऐसा तो नहीं करना है हमें. हेलो. Yes, Siddharth.
Hello. हाँ, yes. Okay. So mistakes like companies you already named, but again, you would like to tell more on your mistakes, as you said you have made a plenty of mistakes in the past. So perhaps mistakes of commission, mistakes of formation, whatever. Yeah, just a minute. हाँ. So for example, I bought into some infra companies. जैसे ईरा इंफ्रा मैंने लिया था, A2Z इंफ्रा लिया था, पुंज लॉयड लिया था. तो यहाँ पे मैंने ये सीखा है कि दे आर वेरी गुड एट ग्रोथ उनका बहुत अच्छा आता है, टॉप लाइन ग्रोथ. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पे वो सिंगल डिजिट में ही जनरली रहते हैं. तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है. पर अभी रिसेंटली आप देखोगे तो इतनी अच्छी टेलविंड है यहाँ पे, बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन इंफ्रा. जिस तरह से बजट स्पेंडिंग हो रहा है, तो इंफ्रा कंपनीज हैव स्टार्टेड टू डू वेल. तो जो है तो कर सकते हैं, पर इन माय लॉन्ग टर्म स्कीम ऑफ थिंग्स मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं शायद नहीं लूंगा. तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम इंफ्रा स्टॉक्स के ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना अच्छा नहीं रहता है, और मोस्टली डेट उनको मार डालता है. और दूसरा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये सब भी इसमें ज्यादा ही होता है. तो इसके वजह से भी थोड़े इश्यूज, दिक्कतें ये कंपनीज को होती है. तो दिस इज वन पॉइंट. फिर जैसे बैंक्स की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक हो गया या येस बैंक हो गया. तो अगेन बैंक्स में आई हैव लर्नड के सी बैंक इज अ हाईली लेवरेज्ड बिजनेस. 1 रुपए इक्विटी होता है और 9 रुपए डेट होता है या 8 रुपए डेट होता है, तो लेवरेज बहुत हाई है. तो वहां पे हमें ये देखना है कि क्रेडिबल मैनेजमेंट, और जिसने साइकिल्स देखी हुई है पास्ट में, बैड साइकिल्स देखी हुई है और उसमें वो लोग थ्राइव किया है, अच्छा किया है, तो वो विथ सच प्लेयर्स रादर देन सिर्फ हम ग्रोथ पे फोकस करें कि एसेट साइड ग्रोथ अच्छा आ रहा है तो ये बैंक अच्छी है, तो वो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. आई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू लायबिलिटी फ्रेंचाइज, कि अगर टफ टाइम आता है तो विल दे बी एबल टू गार्नर लायबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और वो जनरली मैंने देखा है कि बिग बैंक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता है. तो दैट इज व्हाई आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स बिग बैंक्स. और आज तो ऐसा भी नहीं है कि छोटी बैंक्स है तो वैल्यूएशन उसके एकदम ही चीप है, ऐसा नहीं है, डिफरेंस इतना नहीं है. 4-5 महीने पहले एचडीएफसी बैंक वाज ट्रेडिंग बिलो हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन. इवन कोटक डिडंट डू एनीथिंग फॉर लास्ट 2.5 years, और अभी लास्ट क्वार्टर में उसका आरओए वाज अबव 3%. तो आई फील के बैंक्स में ट्राई टू गो विथ प्रूवन प्लेयर्स, क्योंकि हाई लेवरेज वाला बिजनेस है. तो ये एक सीख मिली है कि ऐसी बैंक्स में नहीं जाना है कि जहाँ पे लायबिलिटी साइड प्रॉब्लम आ सकती है. उसके अलावा अगेन सिंटेक्स में सम ऑफ माय फ्रेंड्स का इशू है, ये प्रमोटर ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी आई वेंट बिहाइंड क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा था. आई वाज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वैल्यूएशन, 0.35 टाइम्स बुक वैल्यू पे मिल रहा था. आई थॉट कि अभी इससे खराब क्या हो सकता है. लेकिन वहां भी फिर पैसा गया. तो अगेन अ लर्निंग के जहाँ पे गवर्नेंस का ही इश्यू लग रहा हो तो वहां फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी अगेन आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. शॉर्ट टर्म में प्ले करना हो तो थोड़ा कर भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको रखना है, यू डोंट वांट टू सेल दैट थिंग, तो फिर गो विथ क्वालिटी स्टॉक्स. तो मेरे लर्निंग में यही है कि स्टार्ट योर रिसर्च विथ क्वालिटी एंड एंड विथ वैल्यूएशन. जनरली लोग उल्टा करते हैं, लोग वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं एंड दे एंड विथ क्वालिटी. मेरा उल्टा है, मैं आई स्टार्ट विथ क्वालिटी एंड एंड विथ वैल्यूएशन. फिर मैंने दूसरा भी देखा है कि बिगेस्ट मनी इज नॉट मेड बाय ऑलवेज बीइंग कॉन्ट्रेरियन. जनरली लोग मानते हैं कि कॉन्ट्रेरियन रहने से ही पैसा बनता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे टाइटन व्हेन आई बॉट, इट वाज अ वेल नोन स्टॉक, इट वाज अ डिस्कवर्ड स्टॉक, लेकिन स्टिल इट इज अप 68 टाइम्स फ्रॉम माय परचेज प्राइस. तो ऐसा नहीं है कि वेल नोन स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है. टीसीएस आईपीओ आया था
तब से it has become a big multi-bagger. And TCS was a well-known company at that time also. Maruti IPO आया था 2003 में, it was a well-known company, number 1 company by market share. तो मुझे लगता है 125 रुपीज में IPO आया था, and today it is 9,000 रुपीज. तो ये भी एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई अनडिस्कवर्ड स्टोरी ही लेंगे तो पैसा बनेगा, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है. थोड़ा प्रॉब्लम अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो वेल नोन स्टॉक्स है वहां थोड़े वैल्यूएशंस हाई होते हैं, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाता है, वहां थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखना पड़ेगा, बट स्टिल मनी कैन बी मेड. फिर सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ओवर वैल्यूड स्टॉक एंड एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूड स्टॉक. तो जैसे 60-70 पी बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज अ हाई वैल्यूएशन, जस्ट बस ये देख के बोल देते हैं, लेकिन सी पी कैप्चर सिर्फ 1-2 साल को ही करता है. पी लॉन्ग टर्म को कैप्चर नहीं कर पाता है, क्वालिटी को कैप्चर नहीं कर पाता है, सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को कैप्चर नहीं कर पाता है, कल्चर को कैप्चर नहीं कर पाता है. तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जैसे मैंने बताया, टाइटन को हमेशा ही मार्केट ने हाई वैल्यूएशन दिया है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ट्रस्ट, कल्चर, टाटा ग्रुप, नो मिसडूइंग इन द पास्ट विथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो ये सब पॉइंट्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर गिव इक्वल टाइम लिसनिंग टू योर इनर वॉइस वर्सेस रीडिंग और लिसनिंग टू समवन. तो मैं इक्वल वेटेज देता हूँ, मैं अपने गट फील पे भी बहुत जाता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है. दूसरे का ओपिनियन जरूर लो, लेकिन फिर अल्टीमेटली डिसीजन जब लेना है तो अपना भी वेटेज उसमें रखो, दूसरे पे ही फोकस मत करो, या दूसरे ने जो बोला है वो व्यू को ही बड़ा व्यू मत बना लो. तो ये भी एक मेरा लर्निंग है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी सीख रहा हूँ कि बाइंग अगेन आफ्टर यू सोल्ड नीड्स करेज. तो आपने एक बार एक चीज बेच दी, जैसे मैंने बताया सुनील सिंघानिया जी ने बजाज फाइनेंस बेच दिया था, फिर वो कभी ले ही नहीं पाए. तो ये हमें सीखनी है कि शायद कोई और अच्छा स्टॉक हम बेच भी दे, पर यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू बाय इट एट अ हायर प्राइस इफ द केस इज कंपेलिंग, कि आपको लगता है कि ये और बढ़ सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है, तो व्हाई नॉट टू बाय अगेन. तो ये भी एक लर्निंग है. एंड प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, यानी आपको जो समझ आता है, आपका जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, एंड यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी उसको हर दिन इंक्रीज ही करना है हमें. पर जो स्ट्रेंथ है उसमें आप जाओगे तो इट विल हैव अ डिफरेंशियल इनसाइट, इट विल गिव यू अ डिफरेंशियल इनसाइट. तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. किसी टाइटन है, जनरली 3 टाइप के डिसीजंस होते हैं हमारे उसमें. एक बाइंग डिसीजन होता है, एक होल्डिंग डिसीजन होता है, और एक सेलिंग डिसीजन होता है. तो जो उत्पल जी ने बताया था कि डिफरेंशियल इनसाइट आपके पास अगर है, तो मेरे पास टाइटन में डिफरेंशियल इनसाइट वाज ट्रस्ट. जब भी मैं उनके स्टोर्स में जाता था, एंड यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि 2003 में दे इंट्रोड्यूस कैरेट मीटर. और कैरेट मीटर जब इंट्रोड्यूस किया, और जब लोग आते थे, कस्टमर्स आते थे दूसरे ज्वेलर का गोल्ड चेक करवाने के लिए, ज्वेलरी चेक करवाने के लिए, एंड दिस हैज बीन सेड बाय द एमडी ऑफ टाइटन कि 22 कैरेट बोला होता है कि भाई 22 कैरेट गोल्ड है, और निकलता था 16 कैरेट, 17 कैरेट एट दैट टाइम इन 2003-4. इवन इन 2020-21 ये 16-17 कैरेट का बढ़ के हुआ है 20 कैरेट या 19 कैरेट. तो स्टिल मेनी ज्वेलर्स आर स्टिल नॉट गिविंग द एग्जैक्ट प्योरिटी. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल इंसाइट है टाइटन में, कि टाइटन का 22 कैरेट है तो वो 22 ही होता है, वो उसमें चीटिंग नहीं होती है. तो पीपल ट्रस्ट दिस, पीपल डोंट वांट टू गेट चीटेड ऑन गोल्ड, और ये अभी अवेयरनेस बढ़ रही है. तो ये एक डिफरेंशियल इंसाइट ऐसी है कि जो मुझे बाइंग टाइम पे भी हेल्प किया, होल्डिंग में भी हेल्प किया. होल्डिंग में इसलिए हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल कोविड आया, राइट, तो कोविड के टाइम पे सब क्या बोलते थे कि भाई अभी तो हु विल बाई ज्वेलरी, अभी लोगों के खाने के वांदे हो गए हैं, तो बाई ज्वेलरी कौन बाई करेगा, या नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी कि नहीं आएगी वो नहीं पता है, तो ज्वेलरी कौन बाई करेगा. तो वो टाइम पे हमें ये नहीं देखना है, तब हमें ये देखना है कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है. अगर सब अच्छा होता है तो अगेन टाइटन विल बाउंस बैक, और वही हुआ अल्टीमेटली. तो मैक्रो कंडीशंस खराब होते हैं, एट दैट टाइम दिस डिफरेंशियल इनसाइट विल हेल्प यू. और अगेन सेलिंग में भी वही हेल्प करेगा कि अगर
टाइटन अभी ट्रस्टवर्दी है, कल उठ के वो ट्रस्टवर्दी ब्रांड नहीं रहती है, तो दिस विल बी द बिगेस्ट इनसाइट फॉर मी टू सेल दिस स्टॉक रादर देन जस्ट वैल्यूएशन के भाई 60 का भी 70 हो गया तो मेरे को बेच देना है, या 70 का 75 हो गया तो बेच देना है. आई विल नॉट सेल बिकॉज ऑफ जस्ट हाई वैल्यूएशन. तो दिस इज हाउ ये सब लर्निंग है बस. Right, Siddharth bhai. Meet bhai, your hand was raised. You had something to say? No, Siddharth bhai already answered my question. It was regarding that thing only, that if you have sold any stock in past in which you have lost money, but again you have bought some stocks because you have found some green shoots in it. So I just wanted to know about developing such kind of mindset and the rationale behind it. But he has already explained it in a very beautiful manner. So no such question as of now. All right, thanks. Pramesh? Yeah, Siddharth, my question is with respect to management evaluation. And I really like your point about, the quality is the first and the valuation is the end of the screen, end of the process. So how do you go about evaluating a management? I mean, what are some 2 or 3 key pointers that you definitely look into, maybe through annual reports or their interviews or any other sources, reliable sources, maybe Scuttlebutt, maybe asking the leaders or any of those people about the management. So what are the 2-3 pointers that you look into the management that will यार यहाँ अब ये ठीक लग रहा है कि हाँ okay इसमें कुछ, because you really want a management which is having high integrity particularly. सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी सी अगर वो डामाडोल हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन but overall the intention is to make this going concern continue going. So how do you look into those aspects while you are evaluating? Yeah, a very good question. Thanks for that. See, what you are telling is factors beyond numbers. तो शायद ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें जैसे इंटरव्यूज में हम देखते हैं या एनुअल रिपोर्ट्स में देखते हैं या फिर अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन में देखते हैं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी या टफ टाइम में हाउ दे रिएक्टेड. तो अगेन साइटिंग एग्जांपल ऑफ टाइटन, कोविड के टाइम में उन्होंने कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं की है. तो दिस वाज अ बिग पॉजिटिव फॉर मी. उसके वजह से क्या होता था कि शॉर्ट टर्म में उनका पीएनएल खराब हो जाएगा. टाइटन के एमडी ने खुद बोला था कि ये साल हम चाहते तो 50 करोड़ हमारा प्रॉफिट और बढ़ सकता था कोविड के टाइम पे, लेकिन हमने कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं की, इसलिए हमारा 50 करोड़ ये प्रॉफिट कम आएगा. लेकिन दिस विल हेल्प अस इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि एम्प्लॉयज को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कंपनी टफ टाइम में मेरे साथ है, तो अच्छे टाइम में वो और अच्छा करके देगा, तो यही 50 करोड़ 500 करोड़ कमा के देगा. तो ये ऐसे पॉइंट्स को मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ. दिस इज वेरी सॉफ्टर एस्पेक्ट, राइट. इसको मार्केट या फिर मुझे लगता है एनालिस्ट लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह ट्रस्ट हो गया, कल्चर हो गया. उत्पल सेठ को जब पूछा था कि आपने टाइटन रेयर एंटरप्राइज में इतने सालों तक होल्ड किया तो व्हाट वाज द रीजन, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था. यूट्यूब पे भी वो वीडियो अवेलेबल है, 2 मिनट का ही शायद वीडियो है. तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब हम शॉप में गए थे जहां टाइटन ज्वेलरी बनती है, वहां पे एक एम्प्लॉय को उन्होंने पूछा था कि आपका टारगेट क्या होता है. तो उन्होंने बोला कि वो एम्प्लॉय ने बोला कि आई हैव टू जनरेट मिनिमम 20% ऑन दिस मशीन, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय. यानी उत्पल सेठ को लगा कि अगर एक एक एम्प्लॉय को इस तरह का कमिटमेंट है कि मुझे ये मशीन जो है उस पर 20% जनरेट करना है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज कल्चर. ऐसा जनरली हम कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी में जनरली नहीं देखते हैं, राइट. तो ये पॉइंट उनको बहुत भाग गया था. तो मुझे भी ऐसे पॉइंट्स ही मैं तलाशता रहता हूँ कि ऐसे कोई पॉइंट्स मुझे मिलते हैं. तो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इंटीग्रिटी भी ऐसी चीज है कि बस ऐसे छोटी छोटी चीजों में हमें फाइंड करना पड़ता है. तो मुझे अभी एकदम कोई दूसरे एग्जांपल्स माइंड में नहीं आ रहे हैं, पर जैसे हाँ रिलैक्सो, फॉर एग्जांपल रिलैक्सो के मैनेजमेंट ने 1 रुपये में रिलैक्सो ब्रांड रिलैक्सो कंपनी को बेची थी. ये आप सबको शायद पता होगा, 2015 या 16 में कुछ हुआ था ये. तो 1 रुपये में मैनेजमेंट चाहता तो ज्यादा ले सकता था कंपनी के पास से,
लेकिन उन्होंने 1 रुपी में दे दिया था। तो दिस इज वेरी गुड थिंग ना। तो ऐसी चीजें हमें पकड़नी है कि मैनेजमेंट वाकई में ऐसी चीजों पे पैसा नहीं बनाना चाहता है और वो कंपनी के हित में देख रहा है। तो यही सब है। और कोई पॉइंट आएगा तो मैं आगे बता दूंगा। Sure, Siddharth. That was a very good point. I am a Titan shareholder for more than 10 years now. So I am happy one. And one of the one of the things that you mentioned, I just want to add one of the culture that they also have is that they celebrate the marriage anniversary or maybe even birthdays in certain cases of their customers. They call them to their showroom and they celebrate. So my mother and my parents basically they have lots of photographs. Maybe I think so for last 16 years they would have every marriage anniversary, every birthday they have celebrated there. Right. That's their routine actually, yearly annual routine for them. They are very proud customers of that. And when a lot of customers come to Tanish only to get checked their gold, whether it is of good purity or not. So that's something which is phenomenal. I agree with your point that the culture of the company is something which is, I mean, you will be able to see a culture of the company for a company which is just stores and all those things. Very difficult from an industrial's point of view. Maybe you will have to only ask the dealers and employees how good it is. But good pointers that you have made on that. Thanks, Siddharth. थैंक यू। यानी इसी कल्चर का ऐसा ही है, बियॉन्ड 5 years अगर आपको कोई चीज होल्ड करनी है तो कल्चर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। True. Lakshya, you can unmute and ask your question. Okay, thanks, Prince. So I had just one basic question. It was related to South Indian Bank itself. So recently, the manager over there, the Murali Ramakrishnan, so we had the news that he won't be seeking for reappointment. So due to which, that was a major thesis pointer for me. And once he did not seek for reappointment, so I had exited the stock in itself. But from there on, but I was sure that. The numbers would be good, and as we saw in this result season also, the numbers were great, and the stock somewhere went from 14 to 17. So how can we like discipline ourselves? Like basically my antithesis broke on the fact that the one who was leading the growth for the bank, he'll not be seeking for the reappointment. So due to which I had exited from the stock, but again the numbers were going good. So how can we keep a balance between these two things? If you can just share your pointers over here. Thanks. Siddharth, I cannot hear you. Pramesh, can you? No, I also cannot hear him. But I could like Lakshya on this because I am also tracking this stock, and when I saw this news also of him wanting to leave for his own personal reasons. But we discussed there's a small group of ours that we discussed about it, and we really felt that, okay, this guy was doing some good turnaround story in South Indian Bank. And the management was forfeit in coming up with telling that, okay, they are going to find some replacement. They may not probably have something internally, so obviously they are looking from outside. And they're very keen on replacing it as soon as possible. And that iteration, that as well as numbers that came, and the chairman of the con call also has spoken that whatever Mr. Murali has made on they would try to execute as much as possible in the same spirit. So that gives a lot of confidence in that. So yeah, you're right. At times, sometimes one can make a hasty decision. I made a hasty decision in Hero Motor Corp when there was a CBI raid, and I have not looked back into that counter at all to re-enter also. So it can happen. I mean, it's nothing wrong in it. But maybe once you realize that, okay, now this is right, probably you just lost a gap of between 14 to 17 rupees. So wherever you feel the valuation is right, you cannot still come. The company is available, I think so, at less than a book value. I think so it's around 0.6 price to book. So even if it goes to a book value of 1, price goes to the book value 1 ratio, then it's still a good investment for you.
So look at from that perspective, according to me. Very difficult decision, to be very honest. It's not easy at times because sometimes Yeah. one fine morning you come and see that, okay, this guy has left. You have no other sources to find out what happens. There will be a lot of rumor mills going around and the stock is falling like 9 pence. So you always have. So generally you'll have to wait. I mean, we have seen some stories like Heikel very recently. In fact, Heikel has two stories. One was a story on pollution, and then the stock fell, and there was some MD was on the run, and there was a lot of things. And then there was a second one which happened is with the promoter infighting going on. So at times like this, one has to hold the horns and see what the management says in a con call. Now, that waiting period could be killing at times, but then you have to live with it. That's what Siddharth also mentioned, that when the Titan fell from a particular level, he kept on waiting. His CAGR was only 5%. But he knew the stock is good. At the end of it, it's a Tata company, so it will bounce back whenever those tailwind triggers will come. So that's what exactly I think. So we also have to that patience. I can tell you it's not very easy, but we have to learn. Yeah. Yeah, Prince, I got the I'm back. point. Hello. Okay. Yeah. Yeah, Siddharth. Huh. So see what happened with ICICI Bank in I think 2018 जब चंदा कोचर जी थे और फिर फ्रॉड के केसेस उन पे आए तो एवरीबडी लॉस्ट होप कि अभी क्या होगा. लेकिन सी मैं ऐसा मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस आर बिगर देन इंडिविजुअल्स, और खास करके जब बड़ी बैंक होती है या बड़ी कंपनी होती है वहां पे वन मैन शो जैसा नहीं होता है. सेम थिंग हैपेंड विथ इन्फोसिस विथ विशाल सिक्का, कि जब विशाल सिक्का को निकाला गया या फिर वो उन्होंने रिजाइन किया तो एट दैट टाइम इन्फोसिस स्टॉक टैंक्ड 8 to 10%, लेकिन वहां से इट हैज बाउंस बैक लाइक एनीथिंग, राइट. तो ये चीजें होती है, पर Yeah, right. तब हमें यही देखना है कि बोर्ड अगर अच्छा है, कंपनी अगर अच्छी है, तो बोर्ड विल फाइंड अ सुटेबल सॉल्यूशन फॉर दिस, और नए जो एमडी आएंगे वो अगेन अच्छे ही होंगे और वो अच्छा ही करेंगे शेयर होल्डर्स के लिए. तो दीज आर द टू एग्जांपल्स. साउथ इंडियन बैंक आई एम नॉट ट्रैकिंग ऑफ लेट, पर जैसे मैंने बताया कि बैंक्स में आई गो विथ लायबिलिटी फ्रेंचाइज, आई गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू लायबिलिटी फ्रेंचाइज. तो इसलिए आई विल गो विथ बिगर एंड बेटर बैंक्स. और दूसरा कि जब टफ अभी सी बैंकिंग साइकिल इज गोइंग थ्रू अ टेलविंड, यानी सब अच्छा ही करने वाले हैं, लेकिन जब टफ टाइम आएगा तब रियल पता चलेगा कि मैन और बॉयज कौन है, राइट. तो Yeah, right. ये तब पता चलेगा. अभी तो सब अच्छा ही है ओवरऑल. But that's the thing. Like basically in banking sector, mainly management matters a lot. Right, If right. we give point. Correct. I agree. Yeah, but again, like from what I can conclude from what Pramesh and Siddharth you mentioned was basically that like basically your conviction matters, and also you need to see that if it's worth the hold or not. Perfect. Okay. Thanks a lot for the opportunity. Thank you. I think one question, Athang Aga Financial Services asking, sir, do long-term investing is meaningful in today's investing world? I guess more or less we discussed on this, but again, Siddharth, any points you want to make again, or? See, I am doing it. तो मुझे नहीं पता कि रिजल्ट्स क्या होंगे, बट आई फील के इट विल डू वेल, रीजनेबली डू वेल. उसमें तो मुझे डाउट नहीं लग रहा है. And as I said earlier also, okay, there are some practitioners who have done really very well in long-term investing, and their turnover ratio is very less. और सी मुझे तो लगता है सी इन्वेस्टिंग का डेफिनेशन ही क्या है कि यू स्टे विद दैट बिजनेस, राइट. यू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि टर्नओवर रेशियो 200 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये इन्वेस्टिंग थोड़ी हुआ, ये तो ट्रेडिंग हुआ, ये तो सिर्फ प्राइस से खेलना हुआ. प्राइस नीचे गया तो बेच दो, ऊपर गया तो और लो. तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है मेरे हिसाब से. इन्वेस्टिंग इज फंडामेंटल्स. आप कंपनी को अच्छी तरह स्टडी करो और फिर उसके साथ रहो, वो इन्वेस्टिंग हुआ, मुझे ऐसा लगता है. Right, Siddharth. So we got Sanjeev ji again. Sanjeev ji, any quick question from your end? Because after this, we take one question only and then we wrap up for the day. Yeah. Yeah. I just want to give an example that Siddharth was giving
regarding Titan's commitment of workers for 20%. देवी शेट्टी का नाम सबने सुना होगा हेल्थ केयर में. इज इंडियाज फाइनेस्ट सर्जन हार्ट सर्जन. उसका लो कॉस्ट वो हॉस्पिटल्स चलाते. उनका एक इंटरव्यू देख रहा था. ही सेड नो डाउट वी रन अ लो कॉस्ट हॉस्पिटल एंड सर्जरी, but still each and every surgeon and each and every surgery, the surgeon has to make sure that that surgery is profitable by 20%. So that is the kind of ethos that runs into Devi Shetty Hospital. Yes, good insight. Thanks. Thank you. So Siddharth, like in present point in time, so which sectors or which pockets are, I mean, in your view, lucrative from investing point of view, with a view of say at least 3 to 5 years or more? If you have any, Yeah. obviously we are not after names, but broadly any sectors or maybe any themes which you think can do well. Insurance you already talked about, right? Yeah. So I'm very bullish on consumption story and especially discretionary consumption. तो जैसे मैंने बताया कि $2,500 पर कैपिटा हमने क्रॉस कर लिया है, तो आई फील के डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बहुत अच्छा करेगा. तो वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ही, आप सबको पता ही है. तो थोड़े वैल्यूएशंस हाई हैं, लेकिन दिस सेक्टर शुड डू वेल क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा एंड रिटर्न ऑन कैपिटल तो अच्छा ही है यहाँ पे. तो ये एक सेक्टर अच्छा लग रहा है. सेकेंड इज ऑफ कोर्स बैंकिंग. सी, नो कंट्री कैन ग्रो विदाउट बैंक. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करना है तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट प्ले इज बैंक, राइट? तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है. देन इवन ये एसेट मैनेजमेंट या दिस टाइप ऑफ कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इसे इंडिया में अभी तक हम लोग अगर सेविंग पूल देखें तो मोर इज टूवर्ड्स फिजिकल एसेट्स. यानी आज भी पीपल आर ओवरवेट ऑन रियल एस्टेट. आज भी मैं मेरे क्लाइंट्स को पूछता हूँ कि आपका 100 रुपीज नेटवर्थ है, उसमें से कितना रियल एस्टेट है. तो इट इज मोर देन 60%, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आगे जाके ये रियल एस्टेट का वेटेज भी कम होगा और फाइनेंशियल एसेट का वेटेज बढ़ेगा. और फाइनेंशियल एसेट का वेटेज बढ़ेगा तो वो ट्रेडिशनल थिंग्स में नहीं बढ़ने वाला है, एफडीज और ये सब में नहीं बढ़ने वाला है. इट विल इंक्रीज इन म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ्स और ये जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तो आई फील के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैन बिकम ह्यूज. और यूएस में भी आप देखो जिस तरह से मॉर्गन स्टैनली है या दूसरे फिडेलिटी है, ये सब प्लेयर्स के यूएम देखो एंड कंपेयर इट विद इंडिया, तो वी आर नोवेयर. तो स्टिल ह्यूज रूम एंड ह्यूज स्कोप टू ग्रो. और ये एक सेक्टर ऐसा है कि जिनको कैपिटल ही नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए. So suppose that today somebody is managing 1 lakh crore, tomorrow is given 2 lakh crore. With the same team he can manage, right? तो पूरा बॉटम लाइन में ही आ जाएगा पैसा. तो आई फील कि अभी ये सेक्टर अगेन इग्नोर्ड सेक्टर है, आउट ऑफ फ्लेवर है, पीपल आर वरीड अबाउट टीईआर. तो ऑब्वियसली ये होने वाला है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो विल कम डाउन, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ विल बी वेरी वेरी हाई. तो दिस सेक्टर आई फील के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा रहना चाहिए. इंश्योरेंस आई एम वेरी वेरी बुलिश. मुझे लगता है कि इंडिया इज वेरी वेरी अंडर पेनिट्रेटेड और ये स्पेस शायद अभी भी हम लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं. यानी सी, इंश्योरेंस में क्या होता है कि आज मुझे कोई कस्टमर एक्वायर करना है तो जो भी मेरा एक्सपेंसेस है वो ईयर 1 में ही एक्सपेंस आउट हो जाता है, लेकिन उसके फ्रूट्स तो मुझे ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में भी मिलने वाले हैं. तो इसलिए वैल्यूएशन में थोड़ा ये वो जो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ओनर अर्निंग एंड रिपोर्टेड अर्निंग. तो रिपोर्टेड अर्निंग विल ऑलवेज लुक बैड, लेकिन ओनर अर्निंग बहुत अच्छा होता है वहां पे. तो अगेन, और मुझे लगता है कोविड इज नाउ बिहाइंड अस, तो दिस सेक्टर शुड डू वेल. बोथ इवन आई एम बुलिश ऑन लाइफ इंश्योरेंस के वहां पे भी अंडर पेनिट्रेशन है, बट आई एम मोर बुलिश टूवर्ड्स नॉन लाइफ और खास करके रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये अच्छा लग रहा है. एंड देयर कैन बी स्पेसिफिक कंपनीज आल्सो के जहाँ पे टेलविंड्स हो. तो यानी पर मेजर ये 3 चीजें आई फील के शुड डू वेरी वेल.
Yashwant Sharma, you can quickly unmute and ask your question. Siddhartha, Yes, sir. I am also invested in Kotak since IPO. Oh, great to know और that, एक sir. छोटी सी गलती ये हुई थी कि मैं एक राइट नहीं ले पाया था, तो मेरे पास 4,000 हैं और ये 9,500 का इन्वेस्टमेंट नहीं था बॉस, ये 15,000 का इन्वेस्टमेंट था क्योंकि 150 पे IPO आया था. लेकिन मुझे आज लगता है कि सिद्धार्था से अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू, व्हाई आई शुड नॉट सेल इट राइट नाउ, यू टेल मी काइंडली. नॉट सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन फॉर एनीबॉडी. मतलब मैं उस डिलेमा में ये रहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ लोगों को, दे आर मिंटिंग मनी by jumping the guns. Because I am a bad seller, I am a bad non seller. मेरे पास कोटक 350 गुना है, कोई 100 गुना है, कोई 60 गुना है, कोई 50 गुना है, और जीरोस की लिस्ट भी बहुत लंबी है उसके सामने. लेकिन अब एक बड़ा डिलेमा है, बड़ा द्वंद है कि क्यों ना बेचा जाए इसको, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ कि दे आर जंपिंग द गन्स, दे आर मिंटिंग मनी. अब इससे शायद मैं आपसे चूंकि मतलब कोरिलेट कर पा रहा हूँ, तो आपसे ज्यादा अच्छा कोई जवाब शायद दे नहीं पाएगा. काइंडली. राइट. सी आपने सर वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट देखा होगा, शायद यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है. वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में बताया है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में, कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपना सकता है वो लाइफ में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है. तो वो वीडियो आप जरा चेक कर लेना तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा. दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे सर टाइटन है, टाइटन में 50 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है. दिस ईयर दे हैव गिवन डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज, तो मेरा डिविडेंड यील्ड हुआ 20%. राइट. अभी मेरा शेयर प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क पड़ता है, मेरे को 20% डिविडेंड यील्ड मिल रहा है. लास्ट ईयर दे गेव डिविडेंड ऑफ 7.5 रुपीज, तो मेरा डिविडेंड यील्ड हो रहा था लास्ट ईयर 17.5%. एवरी ईयर मेरा डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है. नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है 20 का 22 या 23% होने वाला है. तो why I should worry about the price? I should be worried about the fundamentals, कि वो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. एज अ शेयर होल्डर आई एम गेनिंग आउट ऑफ डिविडेंड और नॉट. बस यही हमें देखना है. इसको मूवी की तरह, अनफोल्डिंग मूवी की तरह देखो. कोटक का आप ये रिजल्ट देखो, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स आए हैं. अभी लास्ट 2.5 ईयर से इसलिए नहीं चला है क्योंकि थोड़े वैल्यूएशंस हाई हो गए थे, और जिस तरह वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, और अभी इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े कंप्रेस हुए हैं, इसके वजह से नहीं चला. इवन एचडीएफसी बैंक हैज नॉट गिवन मच रिटर्न इन लास्ट 2-3 इयर्स. तो ये तो होता ही है, ये फेजेस है. सिद्धार्थ, मैं समझ You रहा have हूँ to आपकी accept बात. it. सिद्धार्थ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट मैं लोगों को ये देख रहा हूँ कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें दे आर मेकिंग मच मनी, मच बिगर मनी. तो वो जो एक वो आता है ना, एक डिस्ट्रैक्शन आता है ना, वो जो एक द्वंद आता है, उस द्वंद से आप कैसे निपटते हो, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो पीएमएस भी चलाते हो. ये पूछना चाह रहा हूँ. बस ये सब बिहेवियर का ही चीज है, मुझे ऐसा लगता है. साउथ अफ्रीका में एक जंगल है, सफारी है, उसके बाहर लिखा है कि देयर इज नो विनर एंड लूजर हियर. हम लोग है ना लाइफ में हर एक चीज को विन और लूज से देखते हैं. जैसे जंगल में क्या होता है कि लायन अगर डियर को पकड़ लेता है तो इंसान देखेगा ना तो वो बोलेगा लायन हैज वन, डियर हैज लॉस्ट. लेकिन एक्चुअली वो नहीं हुआ है. उसमें क्या हुआ है कि लायन विल गेट फेड और डियर बेचारा खत्म हो गया. ये नेचर का रूल है. इसी तरह लायन अगर पकड़ नहीं पाया तो लायन विल बी हंग्री एंड डियर बच गया. बस ये हुआ नेचर के हिसाब से. लेकिन हम लोग इंसान जब देखते हैं तो उसको विन और लूज की नजर से देखते हैं. तो इसी तरह हम जब दूसरे को कमाते देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है. पर हमें हमारा देखना है कि आर यू हैप्पी होल्डिंग दिस स्टॉक, आर यू हैप्पी विद द मनी यू हैव. अपने को कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इनके लिए 5 करोड़ भी इनफ है और किसी के लिए 100 करोड़ भी इनफ नहीं है. तो ये तो और हर एक बार ये हर एक चीज में होगा. कंपैरिजन तो अभी वर्ल्ड का ये एक डिजीज जैसा हो गया है. पर उसको नहीं अपने को एम्ब्रेस करना है. अपने को अपनी लाइफ अपनी तरह जीनी है. व्हाई टू कम्पीट इन एवरीथिंग, कि भाई इफ यू आर हैप्पी डूइंग द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, सो बी इट. बस उसमें ही रहो. क्यों कंपैरिजन करते जाने का? कंपैरिजन से ही ये सब स्ट्रेस, टेंशन, वरीज आती है. आई डोंट थिंक वी शुड. कुल मिला के ऑन द लाइटर साइड, डिलेमा हैज टू कंटिन्यू. ओवर टू यू. थैंक यू. Thank you, Yashwant ji. So Siddharth, before we close, any recommendation on good books or good text which one can study regarding the market?
See, again, I am not a avid reader like other people. तो अभी recently मैं वो आदित्य नामा पढ़ रहा हूँ, written by आदित्य पुरी's wife. यानी मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को स्टॉक मार्केट का ही पढ़ना है. I can read anything on internet. लेकिन मैं ज्यादा वीडियोस बहुत देखता हूँ मैं. तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो आई लिसन टू पॉडकास्ट, आई लिसन टू, मैंने आपके काफी सारे पॉडकास्ट सुने, यानी ये ट्विटर स्पेसिस आप जो यूट्यूब पे बाद में रखते हो वो मैंने सुने हैं. तो आई विल रिकमेंड एवरीवन के प्रिंस जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यूटिलाइज दिस. और वो अपना इतना डेडिकेशन दे रहे हैं. मैं अभी देख रहा था फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप तीनों दिन अलग अलग होस्टिंग कर रहे थे अलग अलग लोगों को. You are giving such your precious time for people and without any motive. आपका कोई ऐसा पैसा बनाने का या कोई ऐसा मोटिव नहीं है, तो this is great. तो बस मुझे लगता है कि बुक्स में अगर कोई बिगिनर है तो ही शुड रीड पीटर लिंच बुक, वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट, और एक दूसरी भी उसकी बुक है, वो नाम भूल गया. तो वो अच्छी बुक है. फिर एक इंडिया में वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वाला भी, मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स, दिस इज अ वेरी गुड बुक अबाउट इंडियन इन्वेस्टर्स, लेजेंडरी इंडियन इन्वेस्टर्स. तो ये पढ़ सकते हैं. फिर अभी पुलक प्रसाद की बुक आ रही है, आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड दैट बुक. तो अगेन इट इज अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो ये पढ़ सकते हैं. बस बाकी तो ट्राई टू लर्न एवरी डे, जो चार्ली मंगर बोलते हैं कि एवरी डे बस कुछ ना कुछ सीखते जाओ. रात को जब सोते हो तब सोचो कि सोने से पहले कि आज मैंने कुछ नया लर्न किया. और ये अगर करते जाओगे तो अंकित जी कानोडिया बहुत अच्छा एक चीज बताते हैं हमेशा कि स्मार्ट सिंक सर्विसेज वाले, कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी. तो आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा IQ तो इतना हाई है नहीं, तो मैं कैसे जीत सकता हूँ, तो विद कंसिस्टेंसी में जीत सकता हूँ. तो हम लोग मेजोरिटी लोग का ऐसा ही होता है. तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट इन डूइंग एनीथिंग. एक आई थिंक छोटा सा तेजस आर्टिकल इज ऑल्सो देयर. तेजस कैन ऐड समथिंग. I sent him the request initially, like he was added as a speaker, but I don't know whether he's facing any issues or he is busy. So Tejas, just in case if you're free. there is a little addition I would like to make. There is Yeah. one article, "Do Nothing Damn It" by Anand Sridharan of the Nalanda Capital. Please go through it. It's beautiful and Okay. it's on the Thank same you, sir. line. Thank you. It is on the same lines. Thank you. Hi Yeah, Tejas, hi, Prince. and take my thank for like introducing me to Siddharth. No, I mean, listening Siddharth Bhai is always, there is something every time there is something to new learn from Siddharth Bhai. So thank you, Prince ji, for this initiative, and thank you so much, Siddharth Bhai. I gone through your entire talk. So again, so nothing to add much. Thank you, Tejas. Thank you. Thank you. Siddharth, one question is basically around. I also have a similar question on the opportunity cost. So basically, the person is asking, what is the meaning of long term when someone bought some company at one price and after waiting for 2-3 years, the price is more or less same, or maybe it has corrected. So do you think like holding those investment is a wise decision when we view it in the view of opportunity cost? यानी सी यहाँ पे हमें बराबर है पॉइंट कि 3 साल तक नहीं चला है तो व्हाट शुड वी डू. पर अगेन जैसे मैंने बताया कि इफ यू आर इन द राइट कंपनी तो मार्केट विल ऑल्सो टेक इट्स ओन टाइम टू अंडरस्टैंड दैट कंपनी एंड रीरेट दैट कंपनी. जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक बजाज फाइनेंस फ्रॉम 2009 till 2012 or 13 it was trading at around 1 time book value. तो मार्केट वॉज नॉट गिविंग प्रीमियम और री रेटिंग दैट स्टॉक. लेकिन उसके बाद री रेटिंग शुरू हुआ एंड टुडे इट इज एट अराउंड 6.5 या 7 times प्राइस टू बुक, राइट. तो रिलैक्सो में भी यही हुआ था. व्हेन आई बॉट इन 2013 इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 15 PE समथिंग. और फिर 2 साल के बाद उसका री रेटिंग चालू हुआ और टुडे इट इज अ वेरी हाईली वैल्यूड स्टॉक, राइट. तो मार्केट को भी समझने में टाइम लगता है. मार्केट भी देखता है कि इसका कंसिस्टेंसी है कि नहीं है. 1-2 क्वार्टर से मार्केट शायद कन्विंस ना भी हो. तो दिस इज हाउ यू शुड बी, दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड बी पेशेंट इफ यू आर होल्डिंग अ गुड स्टॉक विच इज डिलीवरिंग ऑन फंडामेंटल्स. यानी ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो फंडामेंटल मार्केट शेयर लूज कर रहा है फॉर एग्जांपल,
या कोई ऐसी चीज कर रहा है जो शेयर होल्डर के लिए हित में नहीं है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा डिवर्सिफिकेशन हो रहा है जो अगेन रिलेटेड एरिया में नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है वहां पे, तो ये सब पॉइंट्स को भी हमें देखना है। पर अल्टीमेटली मैं वही मानता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि सी वी आर एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स, हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है ना, इसलिए हमें उन लोग का, वो लोग कैसे सोचते हैं वो सोचना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए थोड़ा उनपे कॉन्फिडेंस रखना भी जरूरी है। और स्टॉक प्राइसेस कैन बी गवर्न्ड बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, यानी वो शेयर प्राइस नीचे भी जाता है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ऊपर भी जाता है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि फंडामेंटली हमें और अच्छी तरह देखना है कि जैसे मैंने बोला टाइटन 5 इयर्स में रिटर्न नहीं था, बट दे वर गेनिंग मार्केट शेयर एवरी क्वार्टर, तो दिस थिंग गिव मी कॉन्फिडेंस। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें देखनी है कि जो डिफरेंशियल इंसाइट हो आपके लिए। बाकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही, यानी सम अदर पीपल विल मेक मनी, सम अदर स्टॉक विल मेक मनी, और अगेन यू हैव टू डिसाइड कि वो जो स्टॉक आपने मिस किया वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है कि वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन है। अगर शॉर्ट टर्म है तो वो तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, यानी पैसा फिर आप डेल्टा से भी बना सकते हो या कुछ कोई भी तरीके से बना सकते हो, राइट। पर लॉन्ग टर्म में वो पैसा बनेगा, सस्टेनेबल पैसा बनेगा, वो इम्पोर्टेंट है। Rightly said, and it is very individual. Like every individual is different, and they have to decide what suits them. So a very good note to end today's session, Siddharth. It was really free flow discussion and really helpful, so as to understand how disciplined investing for long term can be beneficial for us. Thank you so much for taking time for us, and it was really insightful. And surely sometime down the line, if time we will surely try to connect for another Q&A if time allows. And thanks much Tejas for introducing, and yeah, anything before we close, Siddharth? ना बस थैंक यू। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आज आईपीएल का मैच है और उसमें भी सीएसके है और उसमें भी धोनी है, फिर भी इतने सारे लोग जुड़े हमारे साथ, तो आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइंड, क्योंकि आईपीएल में जो व्यूअरशिप होती है और खास करके धोनी के मैच में तो 2 करोड़ समथिंग प्लस होता है जियो सिनेमा में व्यूअरशिप। तो बस ये, एंड थैंक यू प्रिंस फॉर होस्टिंग दिस, आई ऑल्सो रियली एंजॉयड एंड टेक मी विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। सी मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है, तो ऐसा मत समझना कि मैंने जो बोला है वो सब सही ही है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जो मेरे लर्निंग्स हैं, जो मैंने किया है वो मैं आपके सामने रखूं, एकदम ऑनेस्टली मैंने जो सब किया है वही रखा है मैंने आपके सामने। सो टेक इट लाइक दैट, एंड थैंक यू प्रिंस, थैंक यू अगेन। Thank you guys, and surely you guys can connect with us for more such insightful sessions, and if you have any feedback also, you can feel free to share. And just in case we missed any question for any of the attendees, you guys can write to me. I will try to take that with Siddharth. Thank you, good night, and the recorded session will be placed over my YouTube